বাবু গেটটা বন্ধ, গেটটা বন্ধ করে দিন। হ্যাঁ এই লাস্টের প্র্যাকটিক্যালটা আরেকবার দেখাবেন? কোনটা বলো? ওই এসএসএস রুট অ্যাক্সেস করাটা, হ্যাঁ সেটা ওই ডাব্লিউ কিউ তারপরে এক্সক্লেমেশন। কোলন ডাব্লিউ কিউ দিতে হবে, কোলন ডাব্লিউ কিউ এক্সক্লেমেশন। আসছে মানে কোলন দিলেই হয়ে যাবে। ভিআই এডিটর আছে তো, ভিআই এডিটর পড়ো করতে আমি আছে কি করতে হবে, সেভ করতে গেলে, বেরোতে গেলে, লাইন নেভিগেট করতে গেলে দেখাবো। জঘন্য ব্রাউজারটা খুলে যাচ্ছিল একটু। হ্যাঁ এই নাকি তো উপরে দেখো সুইচটা অফ আছে মনে আছে, উপরে দেখ সুইচটা জ্বলছে কিনা। জ্বলছে না তো, দেখ কেবিলটা নেমেছে, দেখ কোনটায় লাগানো আছে। চলো শুরু করি তাহলে, অ্যাটেন্ডেন্স দিতে হবে। এই তোমাদের বাকিটা কই? এই তো দাঁড়িয়ে যাবো নাকি? আচ্ছা বললি যখন দাঁড়িয়ে যাই তাহলে। তারিখ কত? 13। আগের দিন ক্লাস হয়নি তোমাদের? প্র্যাকটিক্যাল কবে ছিল প্র্যাকটিক্যালটা? 3 তারিখ ছিল দেখো তো। 11। আগের দিন সিলেকা এসেছিলেন প্র্যাকটিক্যালে? অনুশ্রী এসেছিলেন? সমিতা এসেছিলে? হ্যাঁ অনুপম? অনিকা আসেনি? সৌরভ আসেনি? গৌরব দা ছিল, শেখর তো আসেনি। আমি এসেছিলাম তো, প্র্যাকটিক্যাল এসেছিলে? শেখর দা অনলাইন চালাই না। সৌরভ আসেনি তো? প্র্যাকটিক্যালের দিনকে জামশেদ না, সঙ্গম আসেনি, গৌরব এসেছিল, রাহুল এসেছিল না, কোনোদিনই আসে না। সুশান্ত আসেনি, প্রারম্ভিক মুস্তফা জাভেদ আসেনি, চিরঞ্জিত আসেনি, সৌমদীপ দীপশিকাতে চাকরি পেয়ে গেছে, অর্ঘ আসেনি, মৃণালিনী আসেনি, সৌরদীপ আসেনি, রঘু আসেনি। মনে হয় দীপশিকা জয়েন করে গেছে না? স্যার ওর এখনো অফার লেটার এসেছে বাট হয়নি। হয়ে গেছে। আচ্ছা আজকের অ্যাটেন্ডেন্স দাও, আজকে অ্যাটেন্ডেন্স। হ্যালো এভরিবডি। 360 শ্রীলেখা, Yes sir. অনুশ্রী, Yes sir. সৌমিতা, অনুপম, অয়নিকা আসছে। রাস্তায় আছে। আচ্ছা সৌভিক, শেখর Yes, sir. অনলাইন। আচ্ছা প্রসেনজিৎ, সৌরভ, জামশেদ, সঙ্গম, গৌরব, রাহুল, সুশান্ত, প্রারম্ভিক, আদিত্য, জাভেদ, চিরঞ্জিত, সৌমদীপ, দীপশিখা, অর্ঘ, মৃণালিনী, সৌরদীপ,
রঘু নেই। ওকে 345 আগের দিন 345 কোথায় গেল? কেউ আসেনি এখনো? কেটে গেল নাকি? কেটে গেল, চলে গেল, সব ঠিক আছে? কেটে গেল। আচ্ছা, তুমি আগের দিন এসেছিলে, আলী রাজা এসেছিল আগের দিনকে? হ্যাঁ এসেছিল। আদিত্য এসেছিল আগের দিনকে। হিনা না, কিষান কামার, সৌরভ এসেছিল আগের দিন না? সৌরভ চাকরি পেয়ে গেছে। আকাশ ছিল আগের দিন? এই আকাশটা পিছলে দিন। অরিজিৎ, অরিজিৎ তো রেকর্ডিং স্যারের কাছে। ঋষি, কানিজ, ঋষি আসেনি, কানিজ আসেনি, শুভম চ্যাটার্জি আসেনি, রোহান, হ্যাঁ রোহান ছিল, মার খেয়েছে আগের দিনকে। শামিমুল ছিল আর মরিয়াম ছিল। স্যার, বলো। স্যার আমি বর্ষা আছি আজকে। ঠিক আছে, বর্ষা নস্কর। ওটাই তো এটা গরমকালে জ্যাকেট নিয়ে বেরোলে লোকে পাগল বলে না? আমাদের এখানে দার্জিলিং হয়ে থাকে। পাবো দেখি, বিনা পয়সা দার্জিলিং। টাকা দিয়েছি তো। ওটার সঙ্গে দার্জিলিংটা হবে বলে বলেনি। বলেনি তো। দার্জিলিংটা হবে বলে, এটা এক্সট্রা অ্যাডেড, কি বলে, ব্যাস ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস। চলো আজকে অ্যাটেন্ডেন্স দাও। আলী রাজা আসেনি, আদিত্য নেই, আসুক না, আবার দেবো কেন। হিনা নেই, কিষান, সৌরভ, আকাশ, অরিজিৎ নন্দী, ঋষি, কানিজ, शुभम। यस सर। अनिल प्रैक्टिकल में आए नहीं, क्या बात है? सर मेरे स्कूल रहता है सर। तुम्हारा स्कूल कैसे है? तुम स्कूल पढ़ती हो कि पढ़ाती हो? पढ़ाता है सर। पढ़ाते हो, अच्छा अच्छा, ठीक है। शुभम चटर्जी, লিখেছে লক রোহান, ওই দেখি চুরিটা ওইখানটা তো হয়নি ঠিক। রোহান, শুভম চ্যাটার্জি নেই, রোহান, শামিমুল, মরিয়াম, বর্ষা। ওকে, বর্ষা চাকরি করছো না ছেড়ে দিয়েছো? স্যার করছি। করো, পরেরটা না পেলে ছেড়ো না, পয়সা দাও, বুঝলে? হ্যাঁ স্যার, পয়সা যা আসছে আসতে দেবে। আসছে স্যার। বটেই বলছি, পয়সা যা আসছে আসতে দেবে, আস্থা বন্ধ করো না। পরেরটা পেয়ে গেলে আগেরটা ছেড়ে দেবে, এরকম করবে। হয়ে গেল তাহলে? আচ্ছা চলো করছি, একটু দাঁড়িয়ে যাই, পুরো পরের বাচ্চাগুলো আসেনি এখনো। এসে গেছে আমাদের প্রসেনজিৎ বাবু। আচ্ছা, অয়নিকা এসে গেছে। আর কে ছিলেন না? আমি করেছি ওই প্রমাণ কোথায়? ওটা না হয় আগে প্রমাণটা তো আনতে হবে, নাহলে ধরবে না। না, আগের দিনের প্রমাণ চাই না, আগের দিনে পড়েছিলাম না, বাকিটা পড়েছি। কি বলছে? প্রমাণ চাই রোজেরটা রোজ। গ্রুপে পোস্ট করা স্টার্ট করে দাও। আচ্ছা, এটা হয়ে গেল। ওকে, আমরা তাহলে আজকে পড়াশোনা শুরু করব। শুভম চ্যাটার্জি এসে গেছে আমাদের মধ্যে। হ্যাঁ, গুড মর্নিং। ঈশানটা কে রে? স্যার আমি এই তুমি? আমি বলে কাউকে চিনি না তো। এই আমিটা কে রে? স্যার আমি ঈশান। ঈশান কোন ব্যাচ? আরে স্যার ল্যাব কোঅর্ডিনেটর। ও তুই, ও বুঝতে পারিনি বাবা, তাই বলছিস। শরীর খারাপ স্যার, সেই জন্য। শোন, আজকে একটু রোদ্দুরটা কমলে বেরিয়ে একটা চবনব্রাশ কিনে নিবি। চবনব্রাশেই হবে, শুনছি সব ভালো হয়ে যাচ্ছে চবনব্রাশ খেয়ে। এটা নতুন বেরিয়েছে বাজারে। আচ্ছা চল, আজকে আমরা তাহলে লিনাক্স ব্যাপারটা একটু ডিসকাস করে নেবো, কি জিনিস। তারপর একটা খুব দরকারি কথা বলার আছে, বলে দেবো। ওটাও মানে পড়াশোনা সংক্রান্তই। अरे लेनो लेनो স্যার দিল কিছু একটা নাকি? স্যার গুড মর্নিং মানে আমাদের ব্যাড মর্নিং স্যার স্যার কিছু একটা গুড মর্নিং অল বলেছে মানে কিছু একটা কাজ আছে, বলেনি বলবে। দাঁড়া, গুড মর্নিং অল লিখেছে মানে কিছু না কিছু বলবে। দেখে মানে
চুপ করে কি ভেবেছি লাস্ট দিনের আগের দিন আমরা গ্রুপ পাবো একদিনের পর প্রত্যেক 15 দিন ধরে শুনতে পারি কিছু ঝগড়া করতে 15 দিন সময় লাগে আগে যে ম্যাম নেট চলে না নেট চলে না সাইমন সুইচটা অন করলি কানেকশন আছে নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার মন্দির এখানে কিছু সরকার কোনো কিছু যা আমাকে না না আমার পড়ানো হয়ে গেছে খালি দিয়ে দিই ডিসকাস করে দেবো জিনিসে ক্লিক হয়ে যাচ্ছে চলো শুরু করছি আমরা তাহলে হ্যালো গুড মর্নিং এভরিবডি কোথায় যাবো তোমাদের রং তুলে বলে পজ করে আছে এটা ল্যান্ডস্লাইড খারাপ হচ্ছে তুমি এদিকে করে যাও এই যে এদিকে মানে তাহলে ওইটা দেখো 2 মিনিট দাঁড়িয়ে যাই বাচ্চা করে এসে যাক বাবা পড়াচ্ছে নাকি বাড়িতে হ্যাঁ স্যার কোন ক্লাস কি পড়াচ্ছে সব নিজে পড়ছো তো যেগুলো পড়াচ্ছ ওগুলো কেন করবো ওগুলো করে করে দেখো সে তো একটা সামনে দিতে পারবে না নাহলে খুব ভপ করে একটা বাড়িয়ে নিয়ে এসে যাবে মুশকিল হয়ে যাবে ভালো করে কিন্তু প্র্যাকটিস করো টার্গেট করবে 6 মাসের মধ্যে গোটা বইটা শেষ করে দেবার তারপর শুধু প্র্যাকটিস করাবে প্রচুর টিউশনি করেছি আমি তাই বলছি না আমার এক্সপেরিয়েন্স থেকে ফাঁকিবাজ 2-3 চর দেবে ফাঁকিবাজি বেরিয়ে যাবে কোনো চাপ নেই গায়ে হাত তোলে গার্জেনকে বলে দেবে ভালো রেজাল্ট চাই বলবে হ্যাঁ গায়ে হাত তুলে দেবো হ্যাঁ বলেছে মেরে দাও ভাবছো কি ভাবছো কি ভাববে না ভাবলে আর ছেলে বলে মানুষ করা যাবে না 2-3 চর দেবে একদিন কথা না বলে ফাট করে দেবে কান ফাটি গরম করতে দেবে দিতাম once upon a time মুম্বাই একদম কানের গোড়ায় নিচে দেবে এইরকম তার হয়ে যাবে পরীক্ষায় পরে যে ভালো নাম্বার হবে আবার ওভার কনফিডেন্স হয়ে যাবে আবার সে মাঝে মাঝে সপ্তাহে একবার করে চড় দেবে মানে একটা ফিটনেসটা বজায় থাকবে আর এমন কাজ দেবে যেটা বাড়িতে প্রসেস করতে না পারে ধরো 2-4 অঙ্ক দেখাবে দেখি পুরো চ্যাপ্টারটা করতে দিবে স্যার ও এমনিতেও পারবে না আজকালকার না মানে গার্জিয়ান আমাদের যারা আগের কি হতো মারা বলতো যে বেশি করে পড়া দিন এখনকার বলছি তুমি 3টে সাবজেক্ট দিয়েছো ও না পারছে না তুমি 2টো ওটা তুমি ওই একটা কুমিরের বাচ্চা দেখাবে ভালো রেজাল্ট চাই এই কুমিরের বাচ্চাটা দেখাবে সবসময় ভালো রেজাল্ট চাই বলবে হ্যাঁ চাই তাহলে আমি যেটা বলছি সেটা শুনবে আপনি কোনো মাঝখানে কথা বলবেন না ব্যাস তুমি একটু স্ট্রিক্ট হয়ে যাও দেখবে গার্জেন ঠিক হয়ে যাবে এটাই কায়দা কোনো এক্সকিউজ শুনবেই না বলছে মা বাড়ি যাবো হবে না ভালো রেজাল্ট চাই তো যাওয়া যাবে তো মা বাড়ি ফেস করছি আমরাই একদম এটাই অ্যাপ্লাই করো ওই ছেলেটা যদি 100 পায় তোমাকে আর কিছু বলবে না তোমার দোষ নেই তখন অয়নিকা যে কোচিং হয়ে যাবে আর দরকার না করছি অনেকা দিদি কোচিং অয়নিকা যে কোচিং সেন্টার ভালো হবে অনেকা দি কোচিং সেন্টার অনেকা দি দিস বলবি তো অয়নিকা কি না বলছে ওই তো তাই টিনাদির কোচিং চলো আনসারকে আরে ওই লোকটা হেভি পড়ায় বললে হবে না আনসারকে নিয়ে কথা হবে ওই লোকটা হেভি পড়ায় স্যার যা অলসো হয় না শেয়ার আলাদাই পড়ায় লোকটা আরে আমি তো কৃষ্ণ স্যার না একটা কল দিন চলো শুরু করি তাহলে আমরা ওকে সো আজকে আমরা একটু থিওরি পার্ট ডিসকাস করব হ্যাঁ সো টুডे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज लिनक्स একটু এবার থিওরি গুলো বলে দিই आप लोग बेसिक कमांड्स रन करना तो सीख गए हो
नाउ यू आर लिटिल फैमिलियर इन लिनक्स। अभी सेल ओपन कर लेते हो, बेसिक फाइल फोल्डर बना लेते हो, লিঙ্কডিন বানাতে পারো, অ্যাক্সেস করতে পারো, আইপি চেক করতে পারো, এগুলো শিখে গেছি সবাই। এবার একটু ফান্ডামেंटल बेसिक्स टॉपिक आज जल्दी आ जाए, हम ही लोग के लिए रुके हैं तब से। और कौन आया? केजरीवाल कहाँ गया? तब है किधर है? গ্রুপে তোমাদের এমএলডি মেসেজ আসলো, মান্থলি লার্নিং ডে, রিচ দ্যাট কোড আছে তো पुराना पीपीटी चालिए देबो ওটাই। जल्दी जल्दी कुछ पेन पेपर कॉपी किधर है? अंदर गोरा। अच्छा रोहन भी आ गया था। अरे वाह, ए सामने यस सर बैठ, सामने बैठ, सामने जाकर बैठ, इधर, हाँ यहाँ बैठ, एकदम सही, सामने चलो, सामने बैठना है। चलो शुरू करছি আমরা তাহলে। अच्छा, so today we are going to talk about the basic information about Linux। Linux क्या है, Red Hat कौन है, बूट लोडर क्या है, ये बेसिक चीजें थ्योरी पार्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने कुछ बेसिक कमांड रन किया है सो दैट वी गेट फैमिलियर इनटू द Red Hat पोर्टल। ठीक है, अभी तो हम लोग मोटा-मोटी अकाउंट बनाना सीख गए जी, हम लोग अभी फाइल फोल्डर बनाना सीख गए हैं, सीख गए ना सब लोग? हाँ, फाइल फोल्डर बना लेंगे, लिंक बना लेंगे, उसके अंदर में अंदर चले जाएंगे, उससे बाहर आ जाएंगे, आईपी वगैरह चेक कर लेंगे, एक्सप्रेस के थ्रू एक्सेस कर लेंगे, ये सब काम हमने सीख गया। अभी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ बेसिक चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो लिनक्स में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज लिनक्स। तो बोले लिनक्स इज ए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर सोर्स कोड इंटरनेट में अवेलेबल है फ्रीली, then it is called as open source operating system. Now what is source code? Now source code is such a programming or such a code जिसको यूज किया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए, राइट? माने खूब बेसिक एक एग्जांपल যদি তোমাদেরকে বলি, आप लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बचपन से यूज कर रहे हो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काफी ग्राफिक्स है, वो सारा ग्राफिक्स सारा फीचर्स को देने के लिए उसके बैकएंड में कुछ कोड लिखा हुआ है। आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, कोई भी इंटरफेस चीजें चलाते हो, लाइक आपका फोन पे, कोई गूगल डॉक्स, कोई एनी एप्लीकेशन यू नेम, उसके बैकग्राउंड पे एक कोड है। बिना कोड का कुछ नहीं होता, कोड ही है, इसके थ्रू इंटरैक्टिव कोड है जो आपसे कुछ पूछता है, आपको कुछ बताता है। सो लिनक्स सिस्टम इंस्टॉल या देने के लिए, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए जो कोड यूज किया गया है दैट इज अवेलेबल इन द इंटरनेट फॉर फ्री। इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन डेवलप योर ओन लिनक्स। बेसिक जिनिसटा इंटरनेटे अवेलेबल আছে, बेसिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए दैट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। उसका सजावट कैसा होगा, उसमें ऑप्शंस कैसे रहेगा, ये एक जन को डेवलप करना होता है। अभी डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट हिसाब से डेवलप करता है। जैसे आज के दिन में मार्केट में क्ले आर्ट मिलता है ना, क्ले आर्ट अब जानते हो, रंगीन मिट्टी जो मिलता है, दुकानदार मिलता है, এবার তুমি ওটা দিয়ে সাপ বানাবে না বাঁদর বানাবে তোমার ইচ্ছে। সেম ওয়ে वो जब क्ले आर्ट फॉर लिनक्स इज अवेलेबल इन द इंटरनेट, you download, you can modify a program. Absolutely nobody has nothing to do with that. তোমার যা মন চায় তুমি করো, তোমার মন করছে স্টার্ট বাটনটা স্ক্রিনের মাঝে দেবো, দাও। आपको जो कमांड देना है बाय डिफॉल्ट, जो ऑप्शंस है, लाल चाय, नील चाय, हल्दे सबूत, जो मन चाहे बनाओ, जो मन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसी को बोलते हैं जिसका सोर्स कोड इंटरनेट में अवेलेबल है। ঠিক আছে না, উইন্ডোজ একটা মাইক্রোসফটের প্রপ্রাইটারি ওএস, তাহলে আমি এটাকে 1 2 পয়েন্ট করে দিচ্ছি, তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। সো ইট ইজ অ্যান ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম। আচ্ছা, an operating system is the software that directs message or directly manages a system's hardware and resources like CPU, memory and storage। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर बेसिक फंडामेंटल जॉब रोल है, ये एक इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर है, एंड इसको यूज करके आप अपना कंप्यूटर का सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, ये सब को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, राइट ना? ठीक तो ना?
Next one. The operating system sits between application and hardware and makes the connection between all of your softwares and the physical resources that do the work. Operating system ही है जिसको use करके आप ये काम करोगे. Just an example is there. Think of an OS like a car engine. An engine can run on its own, but it becomes functional car when it connected with the transmission, axles, and wheels. Okay. Without the engine running properly, the rest of the car cannot work. So this is just an example. Okay. As an example. Okay. Next point. The Linux kernel is the main component of Linux operating system and is the core interface between computer's hardware and its process. It communicates between the two managing resources as efficiently as possible. ये आपका कर्नेल ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है. कर्नेल ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है जिसको यूज करके आप मल्टीपल सिस्टम कॉल्स करते हो. सिस्टम कॉल मतलब क्या होता है? सिस्टम कॉल मतलब ये होता है कि जो सब ऑप्शंस यूज करके आप हार्डवेयर को कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करोगे उसको आप बोलते हो सिस्टम कॉल. हम लोग लिनक्स में उसको बोलते हैं IOCTL. ठीक है, इनपुट आउटपुट कंट्रोल बा IOCTL. হ্যাঁ নিশ্চয়ই স্যার, কেন না, 100 বার বলুন. এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডেফিনেশন আছে, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ কার্নেল. কার্নেল ইজ দ্য কোর or বল सकते हो हार्ट ऑफ लिनक्स which actually interacts with the system hardware directly using system calls. अच्छी एग्जांपल है दिखे दें सर. ये एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. अभी लिखना नहीं है, छोड़ दे, काफी सारा है, हम डॉक्यूमेंट में दे दिए हैं, बाद में बैठ कर लिख लेना. ठीक है, नहीं तो अभी लिखने जाओगे तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा. आज ये वाला पार्ट आज कंप्लीट कर देंगे तो नेक्स्ट डे से हम लोग यूजर मैनेजमेंट या VI एंटर शुरू करेंगे. देखते हैं कितना दूर होता है आज. If I talk about what is kernel, kernel ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट है. कोर माने मेन, एकदम मेन पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड कर्नेल. की काज कर्नेल से ही लोगटा कर्नेल वो कंपोनेंट है जो एक्चुअल में आपका दिया हुआ इंस्ट्रक्शन से काम करवाता है. मतलब सोचो आप कोई भी ऐसा है कि हम लोग बोलते हैं अरसलान में बिरयानी बहुत अच्छा मिलता है. वी ऑल नो दैट. कोलकाता में अरसलान बोल के एक रेस्टोरेंट है, उसके अंदर बिरयानी बहुत अच्छा मिलता है. ओके, नो प्रॉब्लम. ये बात अरसलान का तो हाथ पैर नहीं है. अरसलान बोल के कोई नहीं है जो बिरयानी बनाता है. अरसलान के अंदर में अपना कुक है ना, जो शेफ है या कुक है, वो जो भी है वो एक्चुअल में आपका लिए बिरयानी बनाता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का हाथ पैर नहीं है. ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई कंपोनेंट है जो एक्चुअल में काम करता है. हु इज दैट? एक्चुअली दैट इज कर्नेल. ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नेल ही है जो हार्डवेयर को बोल सकता है चलो ये काम करना है, ये काम करना है, ये तुम्हारे लिए ये काम आया है, तुम्हारे लिए वो काम है. तो कर्नेल क्या है? कर्नेल इज द कोर. फर्स्ट ये क्या है? इट इज द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, और यही है जो हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है. ये वही है जो हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है, और किसी के पास ये पावर नहीं है, और कोई भी नहीं है जो हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है. ओनली एंड ओनली कर्नेल हैज द पावर टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर. ठीक है, using systems call সিস্টেম কল মানে তুমি যে ইনস্ট্রাকশনটা দেবে ওটাকে অ্যাজ এ কল রিসিভ করে. মানে ইনপুট আউটপুট কন্ট্রোলার IOCTL এর ফুল ফর্ম এখানে লেখা আছে দেখো, মানে ইউজিং সিস্টেম কলস. সো এই যে সিস্টেম কল হয়, सिस्टम कॉल माने कि तुम्हें जो इंस्ट्रक्शन दिच्छो, आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि भाई मुझे एक फोल्डर बनाना है, मुझे एक फाइल क्रिएट करना है, मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है, दैट इज इंस्ट्रक्शन. दिस इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज सिस्टम कॉल. आप ना 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 एकदम ही ताई. इट इज जस्ट द इंस्ट्रक्शन. আর কিছু না, इट इज जस्ट द इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन ही है जो आप देते हो, कर्नेल उसको रिसीव करके हार्डवेयर को बोलता है यस. टेक एग्जांपल, द वेटर ऑफ एनी रेस्टोरेंट. आपका एक वेटर है ना रेस्टोरेंट पे, ধরো সৌরভ কালকে ডেটে চলে গেল, কাল সানডে আছে, সৌরভ নিজের পছন্দ মতো একটা রেস্টুরেন্টে ডেটে চলে গেল কারোর সাথে.
কারোর সাথে আমার দরকার নেই, কার সাথে গেছে ধরো গেছে। তো সৌরভ বুলাएगा, ভাই ওয়েটার তোরা इधर आ जाओ, স্যার এসো বলো স্যার একটু প্র্যাকটিক্যাল করবি, খাতা পেন কোথায় তবে এখানে? আচ্ছা ধরো সৌরভ গেছিল, ধরে নিলাম হোয়াটসঅ্যাপ ক্যাফে, খুব ট্রেন্ডে আছে এখন, অকারণ মূর্তি দিকদাম না ইয়েতে বালিগঞ্জ না সাউদার্ন অ্যাভিনিউ যাওয়া আসা আছে তার মানে। আরে এ তো বন্ধু। ঠিক আছে চলে এলো, আবার কি ব্যাপার মানে ফালতু মানুষকে আবার দিচ্ছি। বলছি, কি ব্যাপার? নিজেই আসেন करना दिखता कैसा है? ঠিক দিখা ग्रीन कलर का होता है। सर ओएस है कि सर कोई हार्डवेयर चीज ओपन नहीं हार्डवेयर चीज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है। एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है, हम तुमको पता है आईओसीटीएल कैसे मैंने कॉल कैसा होता है पहले। तो सोचो व्हाट्सएप कैफे में ये सौरभ गया है किसी के साथ डेट, तो बुला लिया कि भाई वेटर थोड़ा इधर आ जाओ, मुझे अपना कुछ फैंसी खाना ऑर्डर करते की पड़ेगा तो चलो बराबर सर तो मुंह पर তো আমাদের সৌরভ বললো যে ভাই ওইটা চলে এসো, ওইটা এসে গেল, সৌরভ বললো তার লিখে ফেলো যে আমার জন্য একটা, বললাম যে ধরো একটা বিরিয়ানি অর্ডার দিয়ে দিলাম আমার বিরিয়ানি পাওয়া যায় না বলে আচ্ছা পিৎজা, চলো একটা পিৎজা খেয়ে নিলে, একটা মিডিয়াম পিৎজা আমার জন্য, আর তুমি ওনাকে জিজ্ঞেস করে না উনি কি খাবেন, জিজ্ঞেস করে নিলে উনি একটা অর্ডার দিয়ে দিলেন। এবার पॉइंट टू नोट इज दैट जो वेटर को आपने ऑर्डर दिया वो एक पेज में लिखता है क्या है ऑर्डर आपका, दिस इज द टेक अवे फ्रॉम दिस एग्जाम। पिज्जा में कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, कॉन्सेंट्रेट ऑन द ऑर्डर दैट वेटर टुक फ्रॉम सौरभ। एक पर्ची में लिख लिया, लेके अंदर चला गया ना, कोड अंदर नहीं बैठा है, कौन है जो सेल उसको बोलेगा कि तुम्हारे लिए ऑर्डर है, वो पूछेगा क्या करना है, ये लो ऑर्डर ये बनाना है, तो ये क्या है, दिस इज सिस्टम कॉल, कहां से मिला यूजर से, राइट। এইটাই মানে আমি কি করব আপনি জানেন, एज ए कुक वो आदमी उस रेस्टोरेंट पे जो मिलता है सब बना सकता है, তাই ও এমপ্লয়েড। এবার যা খুশি বললে তো যা খুশি সৌরভ খাবে না, কি তিনি তো হেলথ কনসাস, দেবে না সব কিছু, উল্টো পাল্টা জিনিস দিলে হবে না, সেফ স্পেশাল চলছে না এটা, তো কি চলছে যেটা ও অর্ডার দিয়েছে, गेटिंग माय पॉइंट। सो आपका कर्नेल वही काम करेगा जो कॉल में लिखा रहे, तो कॉल कहां से आएगा, यूजर से, यूजर इंस्ट्रक्शन देगा, कर्नेल के पास जाएगा, कैसे जाएगा, यूजिंग सिस्टम कॉल, सिस्टम उसको एज ए इंस्ट्रक्शन रिसीव करेगा और कर्नेल को बोलेगा भाई चलो तुमको अभी नोटपैड ओपन करना है, तुमको अभी VLC मीडिया प्लेयर ओपन करना है, तुमको पैकेट ट्रेसर खोलना है, तुमको VMware खोलना है, दिस आर कॉल्स, यही आपका एज ए इंस्ट्रक्शन जा रहा है सिस्टम के अंदर, क्लियर? মানে ইউজার থেকে ওএস এ যাবে, ওএস থেকে হার্ডওয়্যার, হ্যাঁ ম্যাডাম ওএসের মধ্যে কোথায় যাবে, ওএস থেকে ওএস থেকে কার্নেলে যাবে। আচ্ছা নাও व्हाट इज द नेम ऑफ द कर्नेल फाइल एंड কোথায় এটা থাকে, कर्नेल टेक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में ही रहेगा, तो कहां रहेगा, स्लैश बूट बोल के डायरेक्टरी होता है उसके अंदर में ही रहेगा। क्या नाम है कर्नेल का, ধরো ওয়েটারের নাম ধরলাম অরুণ, तो এখানে आपका कर्नेल का नाम क्या है, इट इज VM लिनस, VM लिनस, ठीक है, इन नाम की VM लिनस। चलो देखे ऐसी देख लेते हैं है कि नहीं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम पे। স্যার উইন্ডোজে কার্নেলটাকে কি বলে, মানে উইন্ডোজে रूट MGR
Water intake started. না সিস্টেমটা স্টার্ট হোক। স্যার হ্যাঁ স্যার আবার ওই জিওআই ইনস্টল করার পর ওটা কি মিনিমাল আর যায় না? ওর মধ্যে তো মিনিমাল আছেই এইটার মধ্যে, সার উইন্ডোজ সার্ভার বলছো? হ্যাঁ লিনাক্স হ্যাঁ যাবে যাও যায়, মানে মিনিমাল ইনস্টল করার পরে আর কি কোনটা বেশি ফিচার আছে তাহলে জিইউআই ইনস্টল করার পর তুমি করে কেন যাবে? তুমি তো কমান্ডেই কাজ করো, কমান্ড কাজ করো। যাওয়া যায়। না যাওয়া কিভাবে যাবে? তুমি প্যাকেজ গুলো আনইনস্টল করে দিতে চাইছো? হ্যাঁ করা যায় না কেন, যায়। জিনোম ডেস্কটপ বলে একটা প্যাকেজ আছে, ওটাকে আনইনস্টল করে দিলে চলে যাবে সব। মানে ওটা স্যার মিনিমাল হয়ে যাবে আবার জিওআই থেকে? জিনোমটাকেই ডিলিট করে দাও। মিনিমালি তো কাজ করবে। হ্যাঁ জিইউআই বিআই না ধর তুই জিওআই তে ইনস্টল যদি জিইউআই থাকে প্রবলেম তো কিছু নেই, থাক না। অনুপম বলছে জিওআই থেকে আবার মিনিমাল ইনস্টলেশন করা যাবে কি? যাবে একদম যাবে, 100% যাবে। না না মেশিনটা স্টার্ট হোক, দেখাচ্ছি। Yes. এই মেশিন দাঁড়িয়ে আছে এই জায়গাতে। তারপরে ছিল এই বড় করতে রাস্তায় পড়ে গেছে। আপনার খুব জোর লেগেছে নাকি? চালাতে দিকা স্টার্ট হয়ে গেছে। আচ্ছা ওই আমাদের মানে ওই পার্কে দিয়েছে বস আর এপিডি দাম আছে দিদি, দাম আছে, দাম আছে। এই অনিকা সৌমিত্রকে তো তোর নাম বলে কি হয়তো 10 টাকা 7 টাকা ছাড় দেবে এই ইয়েতে উপরে না রুফে আর উপরে ঢেকে দিয়ে আমি তো না ইউটিউব দেখি ওই চাইনি পরে থেকে ওটা হবে আমি জীবনে প্রথম শুনলাম না আমি আর বেশি করে দিলাম। তুমি নট আর ওরা মুখ বানাতো ওটা কম, ওটা কম, ওটা কম কম খুব আর কম। খাবারটাও দুজন মিলে শেষ আমরা তিনজনে ভালো ওই পফাইলটা বেশি হয়, পফাইলটা লেখাচ্ছেই না এই তো স্টার্ট হয়ে গেছে। এন্টার মারো,
না না ওই क्वालिटी अच्छा अरे यार दिखाई दे रहा है यहाँ पे पूरी सामने का एक्शन नहीं होगा আমি ভাবলাম রূপক স্যার এসছে আর শুনতে এক দুই চার পাঁচ ছয় আট আট নয় 10 11 একজন জ্যাকেটটা লে না এই তো তাহলে স্যার বলে এই বল আমাকে আরে জ্যাকেটটা নেওয়ার জন্য বলছি ঠান্ডা লাগছে ভালো লাগে আরে না উল্টে দেখে পাটা ধরে পাটা পাটা উল্টে দেয় চারবার ওই ম্যাচটা করিয়েছি তারপরে ওর এক্সাম হলো কি হলো বড় শেষ হয়ে গেল হ্যাঁ নিচেরটা চলবে না যাই বলো যাই কবে যাবে বাবা জানে স্যারের ভিতরে একটা জোশ না তারপর সব কিছু না ও 30 হয়ে গেছে তাহলে হবে না তাহলে এত করার কি দরকার ছিল না এত এত কাম করার পর তারপরে ওটা 30 বছর হবে না এত দিলে করার কি দরকার এই তোমার কথা হলো না সমস্যা তো সেই সমরের সাথে মনে নেই আমার তো তারপরে আর কথাই বলি না কি করছো চল লগইন হয়ে গেছে Good. One 192.168, 192.168. 192.168, 192.168. सबको दिख रहा है ना देखो तो हेलो एवरीबॉडी হোয়াইট তো আছে বাবু এটা দেখা অভ্যেস করো কারণ এরকমই হবে ফন্ট সাইজটা একটু বড় করে দিচ্ছি এবার দেখো ठीक है ना अच्छा এবার ভালো করে দেখো हम लोग ने डिस्कस किया कि अपना जो कर्नेल रहेगा वो कहाँ पे रहेगा स्लैश बूट डायरेक्टरी के अंदर राइट ना तो स्लैश बूट डायरेक्टरी के अंदर कैसे रहेगा बंद कर देते हैं देखो की दिए देखबे ls स्लैश बूट देखो इसके अंदर vm linux बोल के दो फाइल है कैन यू सी एक में लिखा हुआ है vm linux एक में लिखा हुआ है vm linux अंडरस्कोर रेस्क्यू ये आपका ओरिजिनल कर्नेल है और इसको हम लोग लिनक्स में बोलते हैं रेस्क्यू कर्नेल रेस्क्यू कर्नेल मतलब ओरिजिनल कर्नेल अगर कभी डैमेज हो जाए तो ये रेस्क्यू कर्नेल यूज करके आप ओरिजिनल वाले को फिर से बिल्ड अप कर सकते हो
ओके एनटीएफएस फाइल सिस्टम हम लोग विंडोज में पढ़े थे। Yes. एनटीएफएस फाइल सिस्टम का एक फीचर है सेल्फ हीलिंग। कोई भी पार्टीशन के अंदर में अगर एनटीएफएस फाइल सिस्टम है और वो पार्टीशन करप्ट हो गया है, एनटीएफएस का अपना फीचर होता है वो ऑटोमेटिकली हील कर सकता है अपने आप। सेम वे लिनक्स में नॉट ओनली फाइल सिस्टम के ऊपर बट ऑल्सो एंटायर सिस्टम का जो मेन प्रोडक्ट है कर्नेल, ये भी अगर कभी करप्ट हो जाए तो आप इसको रीबिल्ड कर सकते हो। हमारे पास कमांड है, हम लोग उसको रीबिल्ड अप कर सकते हैं। रेस्किউ कर्नेल দিয়ে আমরা ওটাকে রিবিল্ড করতে পারবো। স্যার রেস্কিউ বিল্ড আপনি অনেকটা রিস্টোরেশনের মতো। না, রেস্কিউ মানে রেস্কিউ, নতুন করে কার্নেলটা তৈরি করা যাবে, এই ফ্যাসিলিটিটা তোমাকে দেবে। হলো? এবার দেখো एक कमांड टू डिस्प्ले द कर्नेल वर्जन इट्स unm -r। हम लोग ने unm -r कमांड देखा है पहले। अच्छा, तो व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ एन कर्नेल? मेमोरी मैनेजमेंट, रैम को कौन सा प्रोसेस में क्या यूज करना है, प्रोसेस मैनेजमेंट, आईओ डिवाइस मैनेजमेंट माने इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ये पूरा चारों के चारों काम इज डन बाय कर्नेल। तो कर्नेल क्या है? कर्नेल इज द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। It actually interacts directly with the hardware. What are the functions of kernel? Kernel का function पहला memory management, then process management, then IO device management and security management. ये चार, ठीक है ना? रखो आगे, चले आगे चले। क्या रोहन? Yes, sir. समझ में आया ना? बोलना हाँ बाबू। अच्छा, so next Linux kernel को किसने डेवलप किया था? है না ওটাতেও হবে তারাও জবে যাবে স্যার ভ্যাকেন্সি হবে না জব গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি না খাওয়া যাবে এমপি এবং নেটওয়ার্কিং MB আরে আমাদেরকে তো আমি বললাম আরে আমি স্কুল টাইমে বললাম না 5 দিন বলছে না না ডেলয়েটে চলে যাবো। অনিকা একদিন ক্লাস খারাপ করে ফেললো একটু ইউনিভার্সিটি বানাচ্ছি না ওটাতেই করে দাও, ওটা ভালো কোম্পানি বেরিয়ে ওঠে। আমার ডেস্কটপ ফোন কোম্পানি স্যালারি আরো ছিল না ফোন করেছিলাম ফোন চাকরি করে 33 ভাই অত লোককে চিনি মানে বছরে না মাসে ওটা হচ্ছে আমি দিশারি বছরে চরম লেভেলের জন্য দুজন সব সুবিধা নিরাজ কেন দীপশিকাও পেয়েছে আরে ও তো না মানে ইয়ে সেলফ রিলায়েন্স তো সেলফি ও তো নিজের তো মানে এখান থেকে না আমাদের আবার রিজেকশন ফর্মও চলে এসেছে সবাই পাইছিল সেই টাইপ করো না, টাইপ করো না, দেখা যাচ্ছে
তার টাইপ করা বোঝা যাচ্ছে। তুই জানিস না, তোমার ইন্টারভিউ তুমি 22,000 হ্যান্ড পাবে 25 সেই ফোন করেছে এইচআর বলছে নাকি हमारा सीटीसी है 18,000 আমাকে বলেছিল ও এখন টাইম থেকে করাটা নকরি का তুই তোমার খাওয়ারটা কি হলো গো? ভালো ভালো তোমার তো বললো বয়সে প্রবলেম নেই কোনো। আর ওগুলো ভাবতে হয়নি। বয়সটা কমিয়ে দাও তোমরা কেপিটপি রূপক স্যার সেদিন বললো, সেদিন টেক মাইতে যাওয়ার পর বললাম যে স্যার কি প্রবলেম, মানে কি একটু এজ গ্যাপই। তারপরে আবার রূপক স্যার বলছে তুমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, তাই জন্য তোমাকে এবার সেদিন আমি ফিডব্যাক নিলাম, বললো যে তোমার এজ গ্যাপের জন্য তোমার একটু বয়স বেশি, তাই জন্য। আর এইদিকে আমার গল্প হয়ে গেছে। ওভার ও বলছে স্যার স্যার করতে কাজ ঠান্ডা লাগছে আমার মেয়েটা তো পড়ে ভাই আমি তো জানতাম দেখো মাঝখানে আমাদের এইদের জন্য এইসব ছাত্র ট্রেন থেকে নেমেছে ফ্লিপকার্টে ট্রেন থেকে নেমেছে পরপর 30-40 করেছে ঘাবড়ে গেছে 5-6টা বলতে কি কোশ্চেন করে 30-40টা? আমি তো তোমার খাতাতে 30-40টা কোশ্চেন খুঁজে আরে সেই ফ্লিপকার্টে একটা জিজ্ঞেস কি করেছি? না কোশ্চেন তো ইজি ছিল কি ছিল বলো? মানে নরমাল আইপি পিন কোড আইপি তে ডিফারেন্স কোড নাম্বার ডিএনএ ডিএসসি র্যান্ডম কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে বুঝলি তো। এবার কোশ্চেন বলেছি কত টাকা? ইন্ডিয়ান টুরি ছিল ওটা আমার গায়ে লাগছে না। আরে পুরো বাড়ির পাশে ছিল কল্যাণীতে দেখ দুজনে ম্যাম বলছে তোমার টেকনিক্যাল স্যার বলছে কি তুমি কনফিডেন্স হয় বলে মামা ছবি তবে বলে ভালো আছে ভালো করে যার গলা হবে তাকে প্রার্থনা করো, যার গলা হবে এটা থেকে দেবে চুপ কর ওদের জন্য প্রার্থনা করি আমরা সবাই। হয়ে যাবে বুঝতে যাবে রেজিউমে পিছনে হাড় সরে কোথায় এই জায়গাটা বল, এইটা বেশি এই যে তলার লিগামেন্টটা গেল দেখ এটা সরে গেছে মানে লিগামেন্টটা বেশি খারাপ। কি করছে কি করে ওরা জিজ্ঞেস করছিল এক্ষুনি, আমি যে একটু বেরিয়েছি তাই একটু হাসাতে করছে। দেখো ল্যাব সেভেনে কেউ না থাকলেও আমি বেঁচে যাবো, আমি সারাদিন এখানে থাকি, আমার ব্যাগ না হলে আমি কেস খেতে। তাহলে चलो अच्छा चलो कब कंटिन्यू करते हैं। दैट इज लिनक्स को, लिनक्स का जो कर्नेल है, ये जो VM लिनक्स फाइल है ना, ये वाला फाइल को डेवलप किसने किया था, इनका नाम है लाइनस टॉरवाल्ड। लाइनस टॉरवाल्ड इन्हीं फिनलैंड के अधिवासी, ये फिनलैंड के लोग हैं। ओके एंड ही डेवलप्ड दिस कर्नेल इन हिज 21 ईयर ऑफ एज। জাস্ট কম্পিউটার সায়েন্স এর একটা মানে ওর গল্পটা এরকম যে ও কম্পিউটার সায়েন্সের অনার্স হয় ওদের দেশে,
कंप्यूटर साइंस ऑनर्स का स्टूडेंट था और एज ए हॉबी एक कर्नेल डेवलप कर लिया। ही एक्चुअली बॉट यूनिक्स सिस्टम, माने लिनक्स आने से पहले ऐसा ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, दैट वाज यूनिक्स। इसका लाइसेंस था, सब कुछ था, बट उसने लिनक्स तब ना वही टाइम में कथा যদি বলি ওই টাইমে অপারেটিং সিস্টেম খালি अकेला नहीं मिलता था। they used to buy entire system with that कंप्यूटर हार्डवेयर प्लस तुम्हार सॉफ्टवेयर भी एक साथ में मिलता है, जैसे मोबाइल मिलता है एक हार्डवेयर भी मिलता है, उसके में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ रहता है। सेम वे उन दिनों कंप्यूटर मिलता था जिसमें यूनिक्स ओएस डाला हुआ था। तो यूनिक्स का जो कोड है वो गेस करे এটা ये फीचर्स है, इसके बैकग्राउंड पे क्या कोड हो सकता है, जस्ट गेस के ऊपर एक ओएस बना दिया। আমরা 21 বছর বয়সে ঘুমাচ্ছি ঘরে। 4 বছর হলো। কোন আমরা কোন জায়গাটা পিছিয়ে আছি বুঝতে পারছো? এই লোকটার বয়স এখন খুব জোর 50-55 বছর হবে। হ্যাঁ, ওটা তো 91 এ 21 বছর বয়স ছিল, তো খুব জোর 50-55 বছর বয়স হবে, বেশি হবে না। হি ইজ অ্যালাইভ এন্ড টিকিং, এরকম একটা কিকিং। ওই যে ইউনিক্স যেটা ছিল ওটা তো একটা তারপরে ওপেন সোর্স কোনো না software, ওটা ওপেন সোর্স নয় তো, ওটা মাইক্রোসফটের মতন ছিল, ক্লোজড সোর্স। তাহলে কিভাবে ওটা ডিস্ট্রিবিউট? গেস করে বলছি তো, মানে ধরো তুমি যদি প্রোগ্রামিং জানো তাহলে এই পেজটা কি করে ডিজাইন করে তুমি দেখে বুঝতে পারবে, তাই না? धरो एक टोपोलॉजी आज सिस्को की यदि कथा बोली, अगर मैं सिस्को का बात करता हूँ, एक टोपोलॉजी आपने बनाया, आप मुझे बोल रहे हो सर यहाँ से यहाँ तक पिंग नहीं हो रहा है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये यही प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मुझे वो चीज आता है करना। सेम वे अगर एक प्रोग्रामर जो है उसको अगर तुम एक पेज दिखाते हो, एक सॉफ्टवेयर दिखाते हो, वो गेस कर लेगा क्या बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है, कि कैसे होगा। जैसे हमारा अमित सर है ना, अमित सर को तुम बोलोगे ना अमित ये पेजটা আছে দেখো এরকম বানিয়ে দেবে, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বানিয়ে, ও এটাই বলবে হ্যাঁ স্যার বানিয়ে দেবো। हाउ? बिकॉज ही नोज द बैकग्राउंड, वो के बैकग्राउंड वो जाने, हाँ उसको बैकग्राउंड पता है कि ये वाला चीज डेवलप करने के लिए एग्जैक्टली कोड में मुझे क्या क्या लिखना पड़ेगा, तो बाय गेस ये चीज डेवलप किया हुआ है करके आज के दिन में ये जगह पे आ गया है। ये लोग ऑलमोस्ट 90 to 95% मेन फ्रेम सार्वर से लिनक्स ही चले, উইন্ডোজ খালি ইউজ করা হয় এডিএস এর জন্য, ব্যাস আর কিচ্ছু কারণ নেই। পরিষ্কার বাংলা বুঝে না যে যাই বলুন, মাইক্রোসফটের ঘরেও লিনাক্স সার্ভারই চলে, একদম তাই, চলে না, নিজেরা নিজেরা নিজের লাইসেন্স দেয় না। अच्छा এবার কথা হচ্ছে ना, ये तो हम लोग समझ गए कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर कैसे कम्युनिकेट करेगा। ना तो आप हार्डवेयर हो ना तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आप कौन हो? तो यार यूजर। और हम लोग को बाइनरी में बात करना आता नहीं है, वी डोंट टॉक इन 1-0, सो आई नीड समथिंग जिसको यूज करके आई नीड लैंग्वेज या आई नीड ए इंस्ट्रक्शन सेट जिसको यूज करके हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करेंगे कि भाई मुझे डबल क्लिक करना है, इंटरप्रेटर बोले, सो इंटरप्रेटर चाहिए, तो मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा, इसके लिए मेरे पास कुछ जाना पहचाना सा प्रोसेस होना चाहिए, है कि नहीं? मैं सपोज कंप्यूटर धरो 5টা 0 10টা 1 লিখলে ক্যালকুলেটর খোলে, আমি জানবো কি করে? इट इज नॉट फॉर मी, আমার জানার কথাই না, हम पता भी नहीं हो सकता हमको, ठीक तो नहीं ना? अभी हम कैसे पता करेंगे? बोले भाई बाइनरी छोड़ के और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो आप क्या बोलोगे? ये टेक्नोलॉजी का हम यूज नहीं करेंगे। मम्मी पापा कैसे बोलते हम नहीं फोन चलाएंगे, ये की कॉम्प्लेक्स আমি পারবো না, বাট দরকার নেই ফেসবুক করবো। আমি কালকে দেখছিলাম কি করে ইউটিউব থেকে ভিডিও ডাউনলোড করতে, বলছে ये অনেক কিছু করতে দরকার নেই। तो नॉर्मली एज ए नॉर्मल पर्सन वी चूज दैट कि अगर ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है हम नहीं करेंगे, ठीक है नहीं? ধরো एक बड़ा सा टॉपिक आपको पढ़ाया गया डीएचसीपी रिले एजेंट, बहुत বড় প্র্যাকটিক্যাল, এই প্র্যাকটিক্যালটা করব স্যার আসবে বলুন পরীক্ষায়? যদি স্যার ভুল করে বলে দিল না এটা আসবে না, আমি আর করবই না। দেখবে ভিপিএন এর প্র্যাকটিক্যাল করিনি, ঠিক না? র‍্যাপিড স্প্যানিং ট্রি করিনি, করি না তাই তো নাকি? ওএসপিএফ মাল্টি এরিয়া উইথ ভার্চুয়াল লুপ করিনি, অনেক লোক করে, অনেক লোক করে করে ওটা তো করিনি, একটা করেছি ওই। সাইবারও করেছি। দেখবে স্যার বা ম্যাম যে ছবিটা এঁকে দেয় 20টা ছেলে বেঁচে থাকলে একজন থেকে দুজন করে, করে না বাকি কেন করে না? জানে ভালো করে এটা পরীক্ষা দেবে, মিটে গেল ঝামেলা শেষ। কার আপনাকে তো দিলাম কালকে,
এই হলো ব্যাপার। হ্যাঁ, কালকে এক প্রস্তাব হয়ে গেছে, আজকে আরেক প্রস্তাব আছে। না এখনো করেনি, কালকে যেগুলো ছিল মোটামুটি পদের ছিল, ছাগলগুলো আজকে বলবে। যাই হোক, तो यही होलो ব্যাপার। तो आई नीड समथिंग जो मेरा काम को क्या करेगा, इजी बनाएगा, फैमिलियर बनाएगा। जो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए एंड्रॉइड लॉन्च किया गया था, ये यूजर फ्रेंडली है, कोई भी यूज कर सकता है ना। कोई स्टेप अप फोन তারপর স্পিড ডায়াল, স্পিড ডায়াল আছে না, হ্যাঁ স্যার, এক নম্বরটা প্লেস বাই ওয়ান প্রেস एंड होल्ड वन, তাহলে মাকে ফোন মার্কেট ওই ফোন চলে যাবে, प्रेस एंड होल्ड टू ওখানে ফোন চলে যাবে। क्यों, ईज ऑफ एक्सेस। सो आपका इंस्ट्रक्शन को भी अगर आप इजी करना चाहते हो, यू नीड सच ए प्लेटफॉर्म जिसके अंदर में आपका इंस्ट्रक्शन देने का रास्ता या प्रोसेस बहुत आसान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंट सेल। सेल क्या करता है? सेल इज द यूटिलिटी प्रोग्राम व्हिच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नेल। It works as an interpreter which translates human language to machine level language and vice versa. The default shell of Linux is Bash. Bash का full form born again shell है, ठीक है? अच्छा, default shell of SCO, SCO Linux है, SCO माने Santa Cruz Linux है। এগুলো সব Linux এর বিভিন্ন ফ্লেভারস আছে। Santa Cruz Linux আছে, Ubuntu Linux আছে, Minix আছে, Multix আছে, SUSE Linux আছে, Debian আছে, Kali আছে, Tara কি হয় রকি লিনাক্স বেরিয়েছে নতুন, साइंटिफिक लिनक्स আছে, Parrot Linux, প্রচুর লিনাক্স ভেন্ডরস আছে। कारण बहुत ऐसा लोग है जो वही कोड को डाउनलोड करके अपने जैसा कस्टमाइज कर लेके अपना नाम दे। यू कैन नॉट डू इट ऑन विंडोज बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट इसको नहीं देता है। माइक्रोसॉफ्ट का कर्नेल ओपन सोर्स नहीं है, তাহলে অয়নিকা উইন্ডোজ না বেরিয়ে যেত তুমি, তাই না? অন্য নাম দিয়ে দিত, অয়নিকা ওএস, শামিমুল ওএস, উইন্ডোজের মতন দেখতে কিন্তু উইন্ডোজ তো না। কেন না? বিকজ উইন্ডোজ বা মাইক্রোসফট ইজ নট অ্যালাউইং ইউ টু ডাউনলোড देयर कर्नल, but Linux is allowing you to download their kernel, freely available है इंटरनेट में। एक ही प्रोग्रामिंग जानना चाहिए, that is C programming। entire Linux operating system C programming में लिखा हुआ है। if you know C you can develop Linux, no problem। আর কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ লাগবে, only C and only C, C ছাড়া আর কিচ্ছু লাগবে, শুধু C ল্যাঙ্গুয়েজেই পুরো এন্টার লিনাক্সের সমস্ত প্রোগ্রাম লেখা আছে, শুধু C, ব্যাস, নাথিং এলস। এবার টু ডিসপ্লে সেল মানে তোমার কারেন্ট যে সেল কে তোমার হয়ে এই কাজটা করছে, তুমি কি কমান্ড লিখবে? ইউ রান দ্য কমান্ড একো, একো মানে ডিসপ্লে স্পেস ডলার, সেটাই অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। এটাকে এনভায়রনমেন্টাল ভেরিয়েবল বলা হয় এই ডলারটাকে, তাই জন্য এটাকে সেল লিখতে হয়। আচ্ছা, তাহলে এই কমান্ডটা দিয়ে আমরা আমার কারেন্ট সেল চেক করতে পারি। আমার কারেন্ट सेल है ना bin bash, कि ना bash shell, और bash shell कहाँ पे रहता है? /bin डायरेक्टरी के अंदर में, that's why it is दिखा रहा है आप bin bash। ठीक, तो এখানে কি কি টেক অ্যাওয়ে আছে আমাদের? তো what is shell? The shell is the actual interpreter between the operating system or the kernel and the user. It actually translates human instruction into machine level language and machine level language in human instruction। मैं जब इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं देन इट इज ट्रांसलेटिंग ह्यूमन लैंग्वेज टू मशीन लेवल, एंड जब सिस्टम रिप्लाई दे रहा है इट ट्रांसलेटिंग मशीन लेवल लैंग्वेज टू ह्यूमन लेवल लैंग्वेज। यस, फुल स्टॉप। से बैश फुल बॉन्ड अगेंस्ट सेल, BOURN बॉन्ड अगेंस्ट सेल, सब লেখা আছে, কোনো চিন্তা নেই। এই যে বন্ড সেল, এই যে বন্ড अगेंस्ट সেল, ঠিক আছে, সমস্ত লেখা আছে, ওখানে পড়ে দেখো। আচ্ছা, এরপর ইউনিক্স এর ভ্যারিয়েন্টস কি কি আছে, মানে स्को लिनक्स एर फुल फॉर्म सांता क्रूज लिनक्स। HP का अपना AUX बोल के एक लिनक्स मिलता है, HP में जो लोग काम करता है, HP डज नॉट वर्क ऑन विंडोज, HP का अपना पर्सनल डेवलप किया हुआ लिनक्स है। HP जो कंपनी है ह्यूलेट पैकर्ड, ये कंपनी के अंदर में अपना डेवलप किया हुआ OS है। सोचो एक कंपनी है जिसका कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, HP इज नॉट आलू वाला कंपनी, माने छोटा सा बच्चा सा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि इससे उससे चीज लेके चलाता है, नो। HP इज ए वेरी 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 बिग कंपनी जिसका अपना डेवलप किया हुआ OS है।
इसका पूरा जिम्मेदारी उसका अपना है, बट द डिफॉल्ट कर्नल किसका है? लिनक्स का। ओके, लिनक्स कर्नल सेम, इसके अंदर यूटिलिटी सारे के सारे सेम, सब कुछ सेम काम होगा, लुक डिफरेंट, ঠিক না? ধরো আমি বাংলায় কথা বলি, তো আমার বাড়িতে সবাই বাংলায় কথা বলে, आदित्य हिंदी बोलता है, उसका घर में सब लोग हिंदी बोलता होगा, कोई भोजपुरी बोलता है तो घर में सब भोजपुरी बोलता होगा, कोई मराठी बोलता है मराठी बोलता होगा, बट बात तो सेम करता है ना। আমি মাকে বাড়ি গিয়ে বলবো দুটো রুটি করো খাবো, वो बोलेगा कि दो रोटी बनाइए हम खाएंगे, भोजपुरी में क्या बोलेंगे? हाँ, जेटा जो बोलना है, जो मराठी में जो भी बोलना होगा, right? But can you see we are giving the same instruction but in different format. So Linux by Linux format different होगा, but instruction का process same होगा, instruction देने का तरीका same होगा, instruction के वो रिसीव करने के बाद सिस्टम काम सेम करेगा। अब डिफरेंट रूम पे हो, डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें होगा, है कि नहीं? समझ रहा है ना? देख ले, कोई दिक्कत है तो बोल, कोई दिक्कत है बता, सही क्या है फिर बताओ, देख के नहीं बोलना, हिंदी में बोलना है, अपना लैंग्वेज में बोलो, तुम क्या समझे बता, बोल, सुन के कुछ नहीं मिलेगा, बोलना पड़ेगा, जो समझो उतना बताओ, अपना लैंग्वेज में बताओ, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, बताओ क्या सीखे? तो इसमें कोई भी लैंग्वेज अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज बोलेगा, लेकिन काम नहीं, पहले बताओ सेल होगा क्या चीज है, देख के ट्रांसलेशन करने का कोशिश मत करो, तुम जो समझो बताओ, बोलो अपना लैंग्वेज में बोलो, हिंदी में ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं, हमको हिंदी भोजपुरी बांग्ला इंग्लिश ये 4 भाषा समझ में आता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, नो प्रॉब्लम, बोलो बोल बोल किसान, बोलो क्या सीखे? सेल जो है यूजर और कर्नेल के बीच में इंटरफेस कराने का काम करता है, ये एक ह्यूमन यूजर के बोल यूजर फ्रेंडली के रूप में काम करता है। मतलब ऐसे बोलना कि ह्यूमन तो मशीन लेवल लैंग्वेज नहीं समझता, तो हमको कोई चाहिए जो इंस्ट्रक्शन हम लोग अपना लैंग्वेज में ही देंगे, बट उसको ट्रांसलेट करके हार्डवेयर जो लैंग्वेज में समझ सकता है उसमें ट्रांसलेट करके देगा, है ना? हम लोग अभी तक जो कमांड चलाए हो वो सब इंग्लिश में है ना, दैट इज ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, है कि नहीं? लेकिन सीडी का एक्चुअल मतलब क्या है वो कंप्यूटर को नहीं पता है, ये ओएस डज नॉट अंडरस्टैंड, ओएस खाली 10 समझता है, तो कौन है जो तुम्हारा दिया हुआ सीडी कमांड, mkdir कमांड, ls कमांड, uname कमांड, इतना कमांड जो आपने सीखा वो ट्रांसलेट कैसे होगा, कौन किया? सेल ने ट्रांसलेट करके किसको बताया? कर्नल ने लैंग्वेज, कर्नल कौन सा लैंग्वेज में डिप्लॉय देगा? ह्यूमन रीडेबल ना 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 ना, 01 मशीन लेवल लैंग्वेज, एंड फिर से उसको कौन चेंज करेगा? नेट की जैसा है, हम लोग नेटवर्क में नेट पढ़े थे ना, प्राइवेट टू पब्लिक एंड पब्लिक टू प्राइवेट, जब आउटसाइड में जा रहे हैं देन प्राइवेट टू पब्लिक, जब अंदर आ रहे हैं तो पब्लिक टू प्राइवेट, बोथ वे होगा, अगर वन वे होगा तो नहीं होगा, बोथ वे होना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इंटरप्रिटेशन ऑलवेज इज ए बाय डायरेक्शनल थिंग, आप जो बोल रहे हो सिस्टम समझेगा, सिस्टम जो बोल रहा है वो आपको भी तो समझना होगा ना, आपका भाषा सिस्टम समझता है ना सिस्टम का भाषा आप समझते हो, तो इंटरप्रिटर ऑलवेज बाय डायरेक्शनल होता है, आपका सुन के उसको, उसका सुन के आपको चेंज करना, जो दो भाषी का काम करते हैं ना कोई कोई आदमी, इंडिया में बहुत बढ़िया मिनिस्टर थे पहले, आपको नाम सुने होंगे, पी रंजन दास मुंशी, he used to know 19 languages, the boon है 19 लैंग्वेज जानते लोगটা, फॉरेन मिनिस्टर ছিল একটা, तो ये किसी किसी का एक हॉबी होता है कि हम नया लैंग्वेज सीखेंगे, है ना? तो ये आप सीख सकते हो, बहुत अच्छा चीज है। आज के दिन में यूरोपियन कंट्रीज में लैंग्वेज प्रेफरेंस बहुत ज्यादा है, मतलब জার্মান জার্মানি বলবে, ও হিন্দি বলবে না, ইংরেজি বলবে না, স্প্যানিশ লোক ইংরেজি বলতে চায় না, বাট নট সাউথ আমেরিকা মানে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা সবাই পর্তুগিজে কথা বলে, तो अगर आपको अच्छा खासा लैंग्वेज पता है आपको बाहर जाने का भी अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, और क्लाइंट को अगर पता चल गया, क्लाइंट का लैंग्वेज आप जानते हो, वो बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाता है आपसे, समझे? ऐसा है बात। चले आगे, এবার কথা হচ্ছে আমি লিনাক্স শিখবো কেন,
ना हम लोग ने बेसिक कुछ एक दो कमांड सीखा है, तब बात रहा क्यों सीखेंगे, क्या जरूरत है, विंडोज तो अच्छा खासा था, क्या ऐसा चीज आ पड़ा जो हमको लिनक्स सीखना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉस्ट इज द मेन थिंग। कॉस्ट, विंडोज इज नॉट फ्री, लिनक्स इज फ्री। एक नंबर, विंडोज कैन नॉट बी कस्टमाइज्ड, माइक्रोसॉफ्ट जेटा देवे ওটাই ব্যবহার করতে হবে। जो तुमको माइक्रोसॉफ्ट फीचर डाल के देगा, तुम्ही अब आपके पास दो चीज बोलने का ऑप्शन है, वाह की सुंदर फीचर, ये बाबा এটা দেয়নি, बीच का आप कुछ नहीं कर सकते। गेटिंग माय पॉइंट? बट लिनक्स में यू हैव एंटायर अपॉर्चुनिटी टू कस्टमाइज योर ऑप्शंस। देनी हम कर दो, बट यू नीड टू नो प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग पता है तो आप अपना लिनक्स बनाओ ना, कौन मना कर रहा है? अगर नहीं पता है तो दोनों में नहीं पता होगा, लेकिन अगर पता है तो यू गेट ए विंडो टू ओपन और डेवलप समथिंग, राइट? अच्छा, কি বলছে, it is an open source, the open source model means the improvement are easier to make and enables faster innovation। মানে খুব ভালো করে জিনিস ভেবে দেখো, अगर सोचो माइक्रोसॉफ्ट का मैं बात करूं, मैं बुराई नहीं कर रहा माइक्रोसॉफ्ट का, मैं भी माइक्रोसॉफ्ट का ही पास लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे माइक्रोसॉफ्ट से, बस बट आई कैन ऐड ए थिंग हियर, दैट इज, अगर सोचो विंडोज का कोई फीचर्स है जो अभी तक सोचो माइक्रोसॉफ्ट के दिमाग में नहीं आया होगा, तो देयर इज नोबडी टू सजेस्ट माइक्रोसॉफ्ट कि आपको ये फीचर लाना चाहिए। यू कैन नॉट सजेस्ट एनीवेयर, कोई भी ऑप्शन नहीं है जहां पे आप विंडोज को सजेस्ट कर सकते हो कि ये दे, ठीक ना, है कि ना? ভেবে দেখো, ধরো আমার অনেক ছোটবেলা থেকে মনে হচ্ছে এই যে নোटपैड, ये कितना ब्यूटीफुल एप्लीकेशन है, एकदम लाइट वेट है, बड़ा अच्छा लिखता है, उसमें कलर नहीं है, थोड़ा कलर आ जाता तो मजा आ जाता, पर ये आपके दिमाग में है। जब तक माइक्रोसॉफ्ट के दिमाग में ये बात नहीं आएगा, दे विल नॉट। बट थिंक अबाउट गूगल प्ले स्टोर, एवरीवन कैन डेवलप देयर पर्सनल एप्लीकेशन। आप सोचो, जिसने कैंडी क्रश बनाया है और जिसने पबजी बनाया है, दोनों क्या सेम आदमी है? बट एक ओपन प्लेस है, आप अपना डेवलप करके अपलोड कर दो, आप अपना डेवलप करके अपलोड कर दो, सिक्योरिटी चेकिंग होगा, अगर मिल गया ठीक तो आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। फिर नंबर ऑफ पीपल ऑफ डेवलपमेंट आर मोर, देयर आर लॉट्स ऑफ मोर पीपल जो इसके बारे में, इसका डेवलपमेंट के बारे में सोच सकता है। माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है ना, इसको विंडो को छोटा करके रखता है कि ओपन नहीं है, मैं जो बोलूंगा वही होगा। लिनक्स क्या बोल रहा है, मैं जो बोल रहा हूं वो तो होगा ही, बट आई एम ऑल्सो देयर टू लिसन टू यू। अब मुझे बताओ क्या करना चाहिए। यू हैव ए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऐड समथिंग, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप कुछ नया चीजें उसमें ऐड कर सकते हो। विंडोज में आप चाहते हुए भी नहीं कर सकते, बट लिनक्स में देयर इज ऑप्शन, यू कैन। Number two, Linux provides easy access to powerful and scriptable command line tools। जिसको कमांड आता है वो कमांड चलाएगा, जिसको स्क्रिप्ट आता है वो स्क्रिप्ट चलाएगा। विंडोज में आपने पाइथन सीखा, पाइचार्म इंस्टॉल करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, कर्नेल पे जाइए, नॉर्मल जो टर्मिनल खोलते हो ना, मतलब पाइथन का सारा कमांड चलता है, एनी कमांड यूं चलता है, नो प्रॉब्लम, एकदम चलता है, किच्छु লাগবে इंटरप्रेटर किच्छु लागবে, स्क्रिप्ट মানে প্রোগ্রাম, কিচ্ছু লাগবে না, ওই টার্মিনালেই পাইথনে কমান্ড চলবে, এটাই তো মজা পাইথন, प्रिंट हेलो वर्ल्ड सब चलेगा, देखेगा चलेगा। এখানে প্রিंट की जगह पे एको लिखना पड़ता है, एको दैट्स इट। কোনো প্রোগ্রাম চাই না, কিছু ইন্টারপ্রিটার চাই না, কিছু চাই না, এমনি হবে, নো प्रॉब्लम। কি অসুবিধা আছে, কিন্তু চলছে। क्या क्या करना पड़ता है उसमें, सोचो, पाइचार्म इंस्टॉल करते हैं, तो वीएस कोड দিয়ে কিচ্ছু লাগে এমনি এখানেই হবে, है ना। VS कोड तो অনেক ভারী অ্যাপ্লিকেশন, আরো সহজ অ্যাপ্লিকেশন আছে। আচ্ছা, তো ये वाला क्लियर है। नेक्स्ट कमिंग टू लिनक्स इज ए मॉड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज यू टू इजीली रिप्लेस और रिमूव कंपोनेंट। सोचो, ये बड़ा अच्छा चीज है। बाइक कौन कौन चलाना जानता है इधर, बस स्कूटी, स्कूटी हो गया, और निका साइकिल, साइकिल चलाते समझ पड़ी,
মরিয়াম সাইকেল ও সাইকেল বলি হবে আমি সাইকেলে নেবে এসেছি ওই জন্য এবার খেলা গাড়ি বলবো साइकिल चलाते पारते हम लोग सबाई सोचो कोई कोई होता है ना जिसका साइकिल में कैरियर नहीं है ना? तो साइकिल या बाइक ऐसा चीज है जो फुल कस्टमाइजेबल है मेरे पास एक स्प्लेंडर प्लस है और मैं उसको कॉन्टिनेंटल जीटी बना सकता हूँ खाली हो गए नहीं एक टू हो गए ওয়েলিংটন চলে গেলে তোমার স্প্লেন্ডার তখন কন্টিনেন্টাল জিটি হয়ে যাবে সাইলেন্স তো দুদিক থেকে লেগে যাবে সব পাল্টে দেবে বাট ধরো তুমি উইন্ডোজে চাইছো যে আমার নোটপ্যাডটা চাই না তুমি পারবে আনইনস্টল করতে বলবে सिस्टम एप्लीकेशन और तो देखो ना आप बोलोगे यार मुझे विंडोज मीडिया प्लेयर नहीं चाहिए वो की बोलबे आग ना रेखे दाओ व्यवहार करो ना वो क्या बोलेगा छोड़ दो रहने दो यूज मत करना इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा लेकिन जब तुम्हारा सिस्टम चलेगा ना बैकग्राउंड में विंडोज मीडिया प्लेयर चलते रहता है इसलिए मेमोरी मैनेजमेंट में दिक्कत होता है चलो তোমরাই বলছো ঠান্ডা লাগছে কাশ্মীর করে দিতে আমি এখানে বলে যাচ্ছি কি কোন রকমের এগুলো মুশকিল হয়ে যাবে तो लिनक्स को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूलर एक और जगह पे हम लोग पढ़े थे याद है मॉड्यूलर राउटर होता है ना इसको राउटर मॉड्यूलर राउटर होता है ये स्लॉट चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से स्लॉट लगाएंगे अपने हिसाब से स्लॉट निकाल देंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं वी कॉल इट मॉड्यूलर राउटर पता है ना पता नहीं है पता नहीं बोल नहीं बता देते कोई दिक्कत नहीं है सिस्को का जो राउटर होता है उसमें कुछ ऐसा राउटर का सीरीज है जिसमें फिक्स्ड पोर्ट रहता है फिक्स्ड पोर्ट एकदम फिक्स्ड पोर्ट तुम चाहते हुए भी दूसरा पोर्ट उसमें नहीं लगा सकते दिस आर कॉल्ड फिक्स्ड राउटर्स कुछ मॉड्यूलर बोल के एक टाइप का राउटर होता है जिसमें हम लोग वो जो मॉड्यूल्स होता है ना उसको निकाल सकते हैं सपोज मेरा राउटर में मुझे 2 WIC पोर्ट चाहिए तो मैं WIC2D लगाऊंगा मेरा राउटर में WIC पोर्ट चाहिए नहीं 4 इथरनेट पोर्ट चाहिए मैं 4 इथरनेट पोर्ट NM40 लगा दूं ऐसा जिसमें हम लोग पोर्ट्स रिमूव करके अपने हिसाब से पोर्ट कनेक्ट कर सकते हैं उसको हम लोग मॉड्यूलर राउटर्स बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे फिक्स्ड एंड मॉड्यूलर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप अपने हिसाब से फीचर रिमूव नहीं कर सकते दैट इज फिक्स्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आप अपने हिसाब से फीचर को रिमूव कर सकते हो दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम तो लिनक्स इज ए मॉड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम पे कंपनी में जब लिनक्स सर्वर चलता है 10-15 एप्लीकेशन ही मैक्सिमम इंस्टॉल किया हुआ है उतना जितना कंपनी में चाहिए बाकी कोई भी फीचर्स उसमें नहीं मिलेगा तुम्हें बात समझ रहे हो सोचो एक बाय डिफॉल्ट तुम जब GUI लिनक्स इंस्टॉल करते हो उसमें करीब करीब 1300 पैकेजेस होता है जिसका 90% का यूज हम नहीं करते लेकिन बैकग्राउंड पे चल रहा है एंड हो सकता है कोई कोई फीचर ज्यादा रैम कंज्यूम कर ले रहा है कोई थोड़ा सा सिक्योरिटी थ्रेट है रियल टाइम पे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसमें जान पहचान का ही सारा एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ रहेगा मतलब किसी को भी आप सर्वर पे इंस्टॉल नहीं कर सकते यू विल गो टू सम क्वालिटी चेक्स देन विल इंस्टॉल आपका पूरा अगर आपका सर्वर में 50 GB रैम है तो 50 GB रैम का एंटायर मॉनिटरिंग बोलिए ना मॉनिटरिंग हर एक का यूजेज एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए समझे ना बात कोई भी चीज आपका मर्जी के बगैर नहीं चलेगा जो सर्वर में होता है विंडोज में भी लिनक्स में कुछ भी इंस्टॉल कर दिए सर्वर में नहीं क्या आज सुबह मन किया कि बुलबुल मैम हम लोग को आइस काजी करना दिखाई है कंपनी का सर्वर में जाके आइस काजी ट्राई करके 4 मिनट आगे बोल এরকমটা করা যাবে না ভাই তুমি বাড়ি গিয়ে নিজের ল্যাপটপে ভিএম বানা মানে तो कंपनी में তুমি সেটা করতে পারবে না कंपनी में आप वो नहीं कर सकते जो करने का जरूरत नहीं you will get only those features only those packages जो आपका डे टू डे काम के लिए चाहिए होगा एल्स नहीं चाहिए इसीलिए फर्स्ट थिंग वी डू मिनिमम इंस्ट्रक्शन প্রথমেই 700-800 প্যাকেজ বার ऑपरेटिंग सिस्टम চলছে তো তারপরে ওগুলো এডিশনাল ফিচার जो नहीं भी होगा तब भी चलेगा है कि ना समझते हो
এখানে এবার ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম আমি বললাম যেটা কোড ফোড सब फ्री আছে। अच्छा इतना दूर तक सबको क्लियर है? हेलो एवरीबॉडी যারা অনলাইন আছো, সৌরভ, রাহুল, Yes, sir. টিনা, ঈশান, শেখর, Yes, sir. 456 এটা কে রে? আচ্ছা কি হলো বলো কিছু প্রশ্ন। নেক্সট যেটা আমরা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে লাইসেন্স। লাইসেন্স কি জিনিস বলো, লাইসেন্স কি জিনিস কে বলবে? लाइसेंस इसको ऑपरेट करने के लिए एक लाइसेंस होनी चाहिए। अगर लाइसेंस नहीं है तो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। Sir, authenticity. Sir, free Sir, authorization, sir. ना इट इज काइंड ऑफ ओनरशिप। मेरा प्रोडक्ट है, थप्पा कहाँ है दिखाओ, ये रहा थप्पा लाइसेंस। ठीक है देखे देखे ना थप्पा कहाँ है दिखाओ, बोलिए ना कौन हिंदू कौन मुसलमान, थप्पा कहाँ है ना? तो इज देयर एनी टैग? यस, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हैज अ टैग। कहाँ है? एक्टिवेशन जहाँ पे होता है, जब आप रियल टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदोगे मतलब इंस्टॉल करोगे ना, ऐसा नहीं है कि टॉरेंट से डाउनलोड किए और इंस्टॉल करोगे, खूब अपमान करोगे কিন্তু খেয়াল রেখে आराम हो मतलब पूरा बेइज्जत करता है, किच्चू जाने ना किच्चू पड़ा ना एटाই বলে। तो ध्यान रहे एवरीबॉडी, रियल टाइम पे आपको जितना भी क्रैक साइट्स पता है, कंपनी में घुसने के बाद, अरे कंपनी में घुसने के बाद सोचना है हम जानते ही नहीं, क्रैक एक ही चीज ऐसा होना चाहिए माइंडसेट। गलती से भी क्रैक करने का कोई तरीका कंपनी में यूज नहीं करनी। नेवर यूज एनी काइंड ऑफ আমি অ্যাক্টিভেট করে দিচ্ছি, আরে এ তো কোনো ব্যাপারই না। যেটা লাইসেন্স আছে পরিষ্কার বলে দেবে এটা লাইসেন্স আছে, পে করুন তারপর ইউজ করুন, এর আগে না। तो विंडोज इज ए लाइसेंस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसा लाइसेंस? कॉपीराइट लाइसेंस। दो रकमेर लाइसेंस है বা তিন রকমের, কপিরাইট, কপি लेफ्ट और परमिशन। तीन रकम लाइसेंस है, तीन तरीके का लाइसेंस होता है। नंबर 1 इज कॉपीराइट लाइसेंस, नंबर 2 इज कॉपी लेफ्ट लाइसेंस, नंबर 3 इज परमिशन लाइसेंस। ठीक देखो, तो कॉपी लेफ्ट कॉपीराइट माने तो विंडोज এর মতো फ्री নয়, लाइसेंस आपको जितना ऑपरेटिंग सिस्टम आप खरीदोगे यूजर वाइज पे करना। माइक्रोसॉफ्ट से आप 3-4 तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम खरीद सकते हो, पता है किसको किसको बताओ? कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे खरीदा जाता है? हाँ देखिए আমি সকাল থেকে স্যার সিডি পাওয়া যায় যেত हम पिन ड्राइव। ना ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे खरीदना है? आपका कंपनी ने आपको बोला कि माइक्रोसॉफ्ट से 50 लाइसेंस खरीद लो, कैसे खरीदोगे? ऑफिशियल साइट में लॉगिन करके कहाँ लॉगिन आईडी है तुम्हारी? कंपनी देवे ना गूगल में सर्च करोगे और विंडोज 10 डाउनलोड आ जाएगा, वो क्रैक साइट का दिखा देगा। प्रोडक्ट की सर तुमको पहले माइक्रोसॉफ्ट का एक वेंडर फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन ऑपरेटिंग सिस्टम बेच रहा है। तुमको डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट नहीं बेचेगा। बोलो क्यों नहीं बेचेगा? कि माइक्रोसॉफ्ट 50-60 यूजर में डील नहीं करता, दैट्स व्हाई माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्टली डील नहीं करता 50-60 यूजर से। 10-15 हजार यूजर मांगो फिर माइक्रोसॉफ्ट बात करे, इससे पहले भी। So you need a distributor of Microsoft, you need a third party of Microsoft जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देगा। कैसे देगा? हो सकता है वो आपको एक ISO इमेज दे देगा और जिसके लिए लाइसेंस की सीरियल की प्रोवाइड कर देगा, ऐसे हो सकता है। दूसरा होता है OEM। OEM बोल के एक चीज होता है। OEM क्या होता है? क्या आपका यस, ये क्या होता है? ये होता है कि आपका जो हार्डवेयर है उसके साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम को मैप कर देता है। मतलब वही हार्डवेयर में वो छोड़ के और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा, जस्ट लाइक योर लैपटॉप। आज के दिन में जितना लैपटॉप आप खरीदते हो उसमें OEM रहता है। OEM क्या होता है कि आपका लैपटॉप में सोचो, आज मैंने आप लोग को रेल 9 के ऊपर आप लोग को सिखा रहा हूं मैं, और आपको मन किया कि मैं अपना पर्सनल लैपटॉप पे रेल 9 इंस्टॉल करूं, ये लिनक्स इंस्टॉल करूंगा, ওটা দেখো দেখি হবে না। তো বলবে কেন হবে না? এটা তো অপারেটিং সিস্টেম, কেন হবে না কেন? बिकॉज OEM টা ম্যাচ করছে না। তো OEM मैच नहीं कर रहा है, वो पहले से OEM के साथ विंडोज 10 ही मैप किया गया है।
উইন্ডোজ 10ই ইনস্টল হবে, উইন্ডোজ 10 হোমই ইনস্টল হবে, প্রো করতে পারবে না। प्रो भी नहीं करता ना एकदम नहीं, होम उसके साथ मैच किया हुआ তো ফুল ফরম্যাট করলেও है। আমি করে দেখে নিচ্ছি আমার ল্যাপটপ হয়ে যায় তো। তুমি তো কিছু জেল ব্রেক করেছো, সেটা বলো। তুমি বাঁকা রাস্তার কথা বলছি না, কোম্পানিতে এটা পসিবল না, পার্সোনাল বেসিসে তুমি করো না। আমি যখন প্রথম কম্পিউটার কিনেছিলাম, আমি যখন প্রথম উইন্ডোজ সার্ভার শিখেছিলাম, তখন 2008 সার্ভার ছিল। তা আমি খুশি খুশি বাড়ি গিয়ে ডেস্কটপে নিজের উইন্ডোজ সার্ভার নেই इंस्टॉल करार पड़े, जब फर्स्ट डेस्कटॉप आया मुझे पता चला मेरा 600 GB का मूवी गया। আমি তো ক্লিন ফরম্যাট ডিস্ক পার্ট দিয়ে সাইড শিখেছি নতুন, ডিস্ক পার্ট রিলিজ ডিস্ক সিলেক্ট ডিস্ক প্লিজ যা সব চলে গেল। 600 GB মুভি ছিল, 600 GB একদম সব ব্লুরেতে, বন্ডের সিরিজ, কিংসম্যানের সিরিজ, তাও এক মুহূর্তে পারবো গে, কিছু করার নেই, একদম गया, क्या कर सकते अपना गया सीख लिए, ऐसा नहीं करा। ठीक, স্যার বলছি যে मजा आया, मजा आंतरिक मजा आया नहीं। স্যার ওই যে অ্যামাজন ফ্যামাজনে যে উইন্ডোজ ওএসটা যে 7000 8000 টাকা যে পাওয়া যায়, একটা लाइसेंस ওটা একটা লাইসেন্স। ये हो गया OEM, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हार्डवेयर का मैपिंग हो जाएगा। एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम लाइसेंस। क्या होता है वॉल्यूम लाइसेंस? एक की वॉल्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट दे देगा। की वॉल्ट मतलब कलेक्शन ऑफ, जैसे DHCP के पास IP एड्रेस का पूल रहता है, वैसे वॉल्यूम एक्टिवेशन में कोई एक की वॉल्ट दे देता है जिसके अंदर में बहुत सारा की रहता है। अब उस की लेके 1 by 1 मैप कर दो। अगर आप ये की का झमेला नहीं लेना चाहते, देयर इज की मैनेजमेंट सर्वर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, KMS सर्वर। आपका सिस्टम जैसे ही इंटरनेट में ऑनलाइन होगा, आपका लाइसेंस चेक होगा और माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमेटिक उसको एक की प्रोवाइड कर देगा। এটাও করা যায় KMS। देखो थोड़ा जब विंडोज 8.1 का भी इंस्टॉल करना, देखना KMS रहता है, STD OEM KMS है ना। KMS माने माइक्रोसॉफ्ट एक्टिवेट करবে, OEM माने हार्डवेयर मैपिंग होगा, और STD माने नॉर्मल लाइसेंस है, आफ्टर इंस्टॉलेशन मैनुअली आपको लाइसेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी मैडम, ब्यापारটা এরকম তো। तो these are all called what? Copyright license। अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। What about copyleft? That are designed, क्या बोल रहा है ये, that are designed to encourage keeping code open source. Common copyleft licenses include GNU and lesser GNU license। तो copyleft license में क्या है, सोर्स कोड ओपन है, प्रोडक्ट का कोई पैसा नहीं चाहिए। लिनक्स इज ए कॉपीलेफ्ट लाइसेंस। कॉपीलेफ्ट माने कि प्रोडक्ट का पैसा नहीं चाहिए। किसका पैसा नहीं चाहिए? प्रोडक्ट की ISO इमेज का, ISO इमेज का कोई पैसा नहीं चाहिए। कोई पैसा चाहिए नहीं, तो कैसे कमा रहे कंपनी? दे एक्चुअली अर्न्स ऑन द सर्विस। इफ यू वांट कि आप कहीं पे फंसो तो आपको रेड से कोई सहायता चाहिए, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, देन दुगना लगान देना होगा। ऐसा है, ये बिल्कुल भी माइक्रोसॉफ्ट से सस्ता नहीं है, बट यू हैव ए अपॉर्चुनिटी दैट आप खुद से अगर ठीक कर लोगे तो पैसा नहीं लगेगा, अगर खुद से आप ठीक नहीं कर पाए तो पैसा देना एकदम खुद समझ में। মনে আছে অপারেটিং সিস্টেমটা ফ্রিতে দিয়েছিলাম, মনে পড়ে? একবার পয়সা দাও, জিও যেরকম হচ্ছে একদম তাই, একদম তাই। अच्छा, next third type of license is called permissive license। permissive license is not 100% open, but आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, they will verify then they will add। कि उसका जो बेसिक चीज है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप चाहो तो कुछ ऐड कर सकते हो, ऐसा। दैट इज कॉल्ड परमिसिव लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंसটা কিন্তু ভালো করে পড়বে, लाइसेंस अच्छे से पढ़ना, बिकॉज रियल टाइम पे एज ए सिस्टम इंजीनियर लाइसेंसिंग का ऊपर बहुत काम होता है। ठीक है, এবার हु इज रेड? रेड इज अ कंपनी जो वही लिनक्स कर्नेल को डाउनलोड करके अपने जैसा डिजाइन करके मार्केट में लाइसेंस बेचता है। ओके, रेड का कुछ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जैसे फेडोरा,
रेड हैट का क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज का क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10, विंडोज 11, 8.17, 7 विस्टा, एक्सपी, ऐसा सेम तरीके से लिनक्स का जो माने रेड हैट का अपना जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज कॉल्ड फेडोरा। की नाम? ध्यान रहे, फेडोरा का कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आपको रेड हैट की तरफ से फेडोरा का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। খারাপ হলে ফরম্যাট করো আমরা ঠিক আছে, মানে মালের দায়িত্ব আর চাঁদনি মার্কেট থেকে স্পিকার কেনার মতো তোমার দায়িত্ব, আমি জানি হয়ে গেছে, বেঁচে দিচ্ছি তোমার কত বড় বড় টিভি बनाए 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 किसी किसी को लगता है कि हम संभाल लेंगे, चांदी से सारा प्रोडक्ट खराब नहीं निकलता तो किस्मत खराब होना चाहिए। घर लाए अच्छा लाई नहीं। वो रिस्क तुम्हारा है, ऐसा मेरा घर में এটা ছোট सा স্পিকার, এই ছোট এরকম ছোট, আমি ফ্যান্সি মার্কেট থেকে কিনেছিলাম মিডিয়া, তো তখন নতুন নতুন ফ্যান্সি মার্কেটে যেতে শিখেছি, দু চারটে লোকের সাথে চেনাশোনা হয়েছে, ফ্যান্সি মার্কেট থেকে ছোট্ট একটা স্পিকার কিনেছিলাম, এটা আজও চলছে, ভালো চলছে, 7-8 বছর বয়স, কপালের উপর টিভি কত বছর? 7-8 বছর চলছে, একদম একই আছে, কিচ্ছু খারাপ হয়নি, সুন্দর চলছে। বোটের একটা হেডফোন 3 মাস চললো, ভাগ্য খারাপ, কিছু করার নেই। 3 মাস চেঞ্জ হয়ে যাবে, চেঞ্জ হয়ে যাবে। চেঞ্জ, আমার হাত টানলে ছিঁড়ে যায়, এরকম এমন পেঁচিয়ে যাবে যে লোককে দেওয়ার মতন থাকবে না। তো স্যার বলছি, এই যে আপনি যে বললেন যে ওখানে তো মানে অন্য আমি নিয়েও এটা মডিফাই করতে পারি, আমি তো তো আমার যখন মানে আমার তো কোনো ফ্রি অফ কস্ট আমি এটা করছি, কিন্তু আমার যখন প্রবলেম হবে কোনো, তখন আমাকে অ্যাকচুয়াল লিনাক্স থেকে সার্ভিস। না, এটাই ভুল, লিনাক্স তোমায় সার্ভিস দেয় না, তুমি যে কোম্পানির লিনাক্স ইউজ করছো সে সার্ভিস দেবে। লিনাক্স ইজ নট এ অর্গানাইজেশন, লিনাক্স ইজ জাস্ট এ company. It is available, it is made available by Linus Torvald, আপনি যে বললেন ওদের মানে তাহলে মানি সোর্স মানে ইনকামটা কোথা থেকে? সার্ভিস থেকে ইনকাম। তো আমি সার্ভিস মানে আমি মানে তারা যে কপি করে নিচ্ছে, তাহলে তো লিনাক্সের সেটা মানে ইয়ে। লস। না, অ্যান্ড্রয়েড ফ্রি, অ্যান্ড্রয়েড লস। ভালো করে ভাবো জিনিসটা, ওরা কোত্থেকে পয়সাটা পায়? ওদের অপারেটিং সিস্টেম এমন কিছু হবে যেটা ওরা জানে তুমি পারবে না করতে। হ্যাঁ, এবার আমি যখন ওটা মানে মানে আমি হয়তো একটা ওদের ওএস থেকে আমি নিজে বানাচ্ছি অন্য একটা মডিফাই করে ওদের কোডটা নিয়ে, তো তাহলে ওটা প্রবলেম হলে কি আমাকে তখন মানে তখন ওদের থেকে সার্ভিস নিতে হবে? তুমি বুঝতেই পারোনি, আবার ভালো করে বলো। লিনাক্সের যে বেসিক কার্নেলটা ওটা লাইনাস টরভাল্ড ডেভেলপ করে দিয়েছে, ওটা তোমার মতন অনেক বড় কোম্পানিও ডাউনলোড করেছে, যেমন এইচপি, আইবিএম, রেড হ্যাট, উবান্টু, ডেবিয়ান, কালি, এসব আলাদা আলাদা অর্গানাইজেশন। বললে তুমিও ধরো একটা অর্গানাইজেশন অয়নিকা.com, অয়নিকা.com ইন্টারনেট থেকে কি ডাউনলোড করবে? লিনাক্স কার্নেল। ওর ওপরে যে প্রোগ্রামিংটা হবে ওটাই তোমায় কে হেল্প করবে? কেউ করবে না, ওটা তো তুমি হেল্প করবে লোককে, তোমার কাস্টমার থাকবে। ভালো করে বোঝো, তুমি কিন্তু এন্ড ইউজার হিসাবে কখনো ডাউনলোড করো না, তুমি ওটার উপর বিজনেস করবে বলে তুমি ডাউনলোড করছো। रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट फ्री, रेड हैट का लाइसेंस है, लिनक्स इज फ्री। रेड हैट ने उसको डाउनलोड करके अपना रूल्स ऐड करके अपना कस्टमर माने अपना कस्टम फीचर्स ऐड करके लाइसेंस में बेचता है। তাহলে রিলেটেড আর কি প্রোডাক্ট আছে লিনাক্স এর মতো? এরকম প্রচুর প্রোডাক্ট আছে। রেড হ্যাটের আপনার অপারেটিং সিস্টেম আছে, রেড হ্যাটের ক্লাউড আছে নিজস্ব, রেড হ্যাটের কন্টেনার সার্ভিস আছে, ওপেন শিফট বলা হয় একে, রেড হ্যাটের নিজস্ব ভার্চুয়ালাইজেশন আছে যাকে ওপেন স্ট্যাক বলা হয়, রেড হ্যাটের কিউবারনেটস আছে যাকে আমরা অর্কেস্ট্রেশন বলি, প্রচুর প্রোডাক্ট মানে আছে। আমরা যে রেডারের সাইডে ইউজার আইডি বানালাম ওখানে গেলে সবটা দেখা যায়। পুরোটা কি কি সার্ভিস রেড হ্যাট দিচ্ছে, নট অনলি অপারেটিং সিস্টেম, যেমন মাইক্রোসফট ইজ গিভিং নট অনলি অপারেটিং সিস্টেম বাট অলসো লটস অফ অ্যাপ্লিকেশনস, অ্যানালিটিক্স টুলস, পোর্টালস, SaaS বেসড সার্ভিস, যেটা খুব ট্রেন্ডি নাম আজকের দিনে। কে মাইক্রোসফট কি দিচ্ছে না SaaS বেসড সার্ভিস, কি জিনিস? 365 আর কিছু নেই। এটাই মাইক্রোসফট এক টাইমে আইএসও বেচতো। আজকের দিনে যেটা তোমরা 365 ইউজ করছো, আমরা যখন তোমাদের জায়গায় ছিলাম
আমরা এইটা অফলাইন সার্ভারে ইনস্টল করতাম। তো কোনটা 365 এর মেলটা ওটার নাম এক্সচেঞ্জ সার্ভার ছিল। আমরা নিজেরা ম্যানুয়ালি ইনস্টল করেছি, রূপক স্যারকে জিজ্ঞেস করবো, আমরা ক্লাসও নিতাম এর আগে। হ্যাঁ, আমরা অফলাইন সিস্টেমে ইনস্টল করতাম, একটা ভার্চুয়াল মেশিন 16 জিবি র্যাম দিতে হতো, তবে চলবে। ইনস্টলেশনটাই শুরু হবে না, 16টা স্টেপ 3 ঘন্টা লাগতো। 16টা স্টেপ একটা এপাশ ওপাশ হলে শুরু থেকে শুরু করে। স্যার ওটা তো ফ্রি ভার্সন ছিল না? না স্যার, মাইক্রোসফট ওয়ান অফ দ্য কস্টলিয়েস্ট প্রোডাক্ট ছিল এক্সচেঞ্জ। আচ্ছা বন্ধ করে আজকের দিনে এক্সচেঞ্জ বন্ধ করে দিয়েছে, দিয়ে কি বলছে, তোমার তো এত পয়সা নেই, তুমি আমাকে পয়সা দাও, আমি তোমায় দিচ্ছি। কি সেটা 365, আর কিচ্ছু না, as simple as that। মাইক্রোসফটের স্কাইপ ছিল তো, स्काइप पे एप्लीकेशन आता था पहले। ব্লু কালার। तो কি বলছে মাইক্রোসফট, आज के दिन में माइक्रोसॉफ्ट क्या बोल रहा है, ও তুমি ভালো করে মিটিং করতে পারছো না, পয়সা দাও, আমি টিমস দিচ্ছি। मार्केट बेस्ट टीम मीटिंग एप्लीकेशन, टीम्स जैसा कोई नहीं। জুম ফুম চলে না মার্কেটে, চলে টিমস। বলছে ও তুমি এমএস অফিস চালাতে পারছো না, কোনো অসুবিধা নেই, আমি দিচ্ছি মাইক্রোসফট এক্সেল, অনলাইন লগ ইন করো, এমএস 365 এর পয়সা দাও। তুমি ক্রস ডোমেন বানাতে পারছো না, ক্লাস রিলেশনশিপ পারো না সার্ভারে, বাবা দরকার নেই, আমি দিচ্ছি। কি না ना रेगुलर टीन है। ऑफिस 365 में जो तुम्हारा ये था ना, डोमेन का नाम है ना, डोमेन का नाम था, याद है, भूल गए? हम लोग लिखते थे ना कि धरो rohan.onmicrosoft.com, एक यूजर नेम होता था, admin@ कंपनी का नाम .onmicrosoft.com। हाँ हाँ। ये onmicrosoft.com तो माइक्रोसॉफ्ट का डोमेन है। आपको अच्छे से एडीडीएस नहीं आएगा तो माइक्रोसॉफ्ट को पैसा देना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे से एडीडीएस आता है, आपका अच्छा ऑफलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है, यू डू नॉट नीड माइक्रोसॉफ्ट 365। ভালো করে ভেবে দেখো, যেই সার্ভিস গুলো ওরা এক এক করে অবসলিট করছে, जो सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट धीरे धीरे बंद कर रहा है, वो सेम टू सेम सर्विस दे आर अलाउइंग इन क्लाउड। इंफ्रास्ट्रक्चर का झमेला आज के दिन में कोई नहीं लेना चाहता। व्हाई सो? बिकॉज न्यू कंपनीज वर्किंग ऑन हाइब्रिड। मुश्किल से 600 700 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, सारा कुछ क्लाउड में है, सबको लैपटॉप धरा दो, खत्म करो। पहले क्या होता था, कंपनी का बड़ा सा कंपनी होता था, अपना सर्वर रूम रहता था, उसमें नेटवर्क लगाओ, स्विच लगाओ, सर्वर लगाओ, कूलिंग लगाओ, तुम की करे पैसा। माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर से सेम टू सेम सर्विस आपको मिल जाएगी, सेम टू सेम सर्विस। तो माइक्रोसॉफ्ट नॉट ओनली सेल्स विंडोज, they sells every analytics tool, office product, 365, mail, তোমার business analysis, কি না, same to same product Red Hat का भी है। तो Red Hat एक माइक्रोसॉफ्ट जैसा ही कंपनी है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ ये सब कुछ भी बेचता है। Yes, there are some pros and cons both in Windows, both in There is, আমি তো আপনার কখনোই কাউকে বলবো না যে ভাই Red Hat এর চেয়ে ভালো অপারেটিং সিস্টেম হয় না, সত্যি তো ইউজারকে টাচ করতে পারে না, এটা মিথ্যে নয়। एक समय 99% लोग एंड यूजर विंडोज चलाता है ना। बड़ा माइक्रोसॉफ्ट का एक अच्छा बिजनेस पॉलिसी है, कैसे पता है? आज के दिन में जो ब्रांडेड कंप्यूटर्स बेचता है, जो सब कंपनी लाइक लेनोवो, एचपी, एसआर, डेल, ये सब कंपनी प्लस लैपटॉप जो बेचता है, सब एक बॉन्ड साइन करवा दिया है। तो जब आप लैपटॉप निकालोगे, उसमें पहले से ही OEM विंडोज ओएस रहे, ये पहले नहीं था। यूज करो, तुम्हारे लैपटॉप कतदिन পুরানো কতদিন হবে? মানে প্রথম ল্যাপটপ সে তো কোথায় ছিল? সেটা জিজ্ঞেস করছি, সেটার মধ্যে কবে কিনেছিলে? আমি স্যার কিনেছি। তোমার নাম প্রসেনজিৎ, না 2006 হবে। ঠিক না? তখনকার দিনে আমাদেরকে বলা হতো ল্যাপটপ কিনতে যাওয়ার সময় যে DOS ল্যাপটপ নেবে না উইন্ডোজ ল্যাপটপ নেবে। DOS এ XP টা চলতো না, DOS ল্যাপটপটা নিতাম আমরা যাতে আমাদের মন পছন্দ ऑपरेटिंग सिस्टम डालते पारी ताकि। अभी आज के दिन में DOS लैपटॉप नहीं मिलता, यू नीड टू बाय ऑपरेटिंग सिस्टम ना। DOS माने वो उसका कोई फिक्स्ड ओएस नहीं होगा, उनको बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का लैपटॉप मिलेगा। दुकानदार को तुम जो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलोगे वो इंस्टॉल करोगे, तुम लिनक्स चलाओ, विंडोज चलाओ, मैक चलाओ, सब चलेगा, ऐसा मिलता था। माइक्रोसॉफ्ट ये कंपटीशन ही बंद कर दिया।
कंपटीशन कॉम्प्लीटली बंद है, 100% लैपटॉप विंडोज का ही होगा। तुम चाहते हुए भी विंडोज बिना विंडोज का लैपटॉप नहीं ले सकते। एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, डेस्कटॉप ले लो। लैपटॉप अगर लोगे, सोचो अभी आज के दिन में अगर कंपनी का जगह नहीं है, दे विल नॉट बाय डेस्कटॉप, दे विल गेट लैपटॉप, इंटरनेट का रिचार्ज करके घर भेज देगा एम्प्लॉय को। लैपटॉप तो विंडोज ही होगा, बिजनेस है খাবো খাটা। তো মাইক্রোসফট এই জন্য আজকের দিনে ওয়ান অফ দ্য রিচেস্ট কোম্পানি, এইটা হচ্ছে ওর বিজনেস পলিসি। এটাই আমি করবো যে এলিমিনেট করে দেবো, কোনো অপশনই রাখবো না মার্কেটে, অন্য কেউ চলতে না পারে। तो कहाँ पे लिनक्स चलेगा? लिनक्स मेनली फोकस ऑन मेन फ्रेम, मेन फ्रेम चले लिनक्स मेनली, যেখানে কোম্পানিতে সার্ভার আছে, স্কিলড লোক আছে, যে লোক খুব পড়াশোনা জানে সে উইন্ডোজ চালায়। কেন? অনেক, এক তো অনেক দাম, 2 নম্বর হচ্ছে অনেক রেস্ট্রিকশন আছে, अपने जैसा तुम उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते उतना ज्यादा, and there are lots of problems there. That's why Linux install করা হবে সার্ভারে, ক্লায়েন্টের কাছে এন্ড ইউজারে উইন্ডোজ না, এরকম। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার রেড তো এতটাও খারাপ লোক না, আমরা অনেকক্ষণ রেড কে একটু ভিলেন করলাম, একটু হিরো করি চলো। तो रेड क्या बोल रहा है? तो आप रेड को कोई आदमी गरीब सा बोलता है कि क्या आपका प्रोडक्ट तो पैसा लगता है, क्या हम नहीं सीखें? बोला हाँ सीखो, बिल्कुल सीखो। सीखने के लिए हम लोग एक कम्युनिटी एडिशन लॉन्च करेंगे। क्या लॉन्च करेंगे? कम्युनिटी एडिशन। कम्युनिटी एडिशन मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एडिशन में पैसा नहीं लगता, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? You have to make a promise that you are not going to use it on your corporate industry. आप इसको अपना कॉर्पोरेट में यूज नहीं कर सकते, ये आप सीखो पढ़ो, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट जिस दिन पता चल गया कि आप ऑर्गेनाइजेशन पे चला रहे हो, 3 गुना लगान देना पड़ेगा, मतलब रेड का लाइसेंस जो फीस है उसका 3 गुना पैसा फाइन मार के जाएगा। रेडिट वाला फिजिकली है, हाँ फिजिकली विजिट करता है, हाँ तो इन माइक्रोसॉफ्ट भी आता है। तो क्या है प्रोडक्ट का नाम? सेंटोस, इसका नाम है सेंटोस। सेंटोस का कोई, सेंटोस फ्री है, रिसेंटली एक और खेल हो गया, रेड ने और एक कायदा किया। सेंटोस तो फ्री था, कोई बिजनेस नहीं हो रहा था, आराम से रेड सेंटोस को आईबीएम को बेच दिया। मार्केट में तो कौथा मार्केट बीच में कोई एक बात मार्केट में बहुत आया था, रेड बिक गया। रेड बिका नहीं है, रेड अपना जो प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस नहीं करता था उसको आईबीएम को बेच के प्रोडक्ट बिजनेस कर रहा है। सेंटोस 9 वाज द लास्ट फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बाद से जो आएगा इसका लाइसेंस रहेगा आईबीएम का। आईबीएम क्या करता है? आईबीएम का भी अपना लिनक्स है, आईबीएम बेच दिया आईबीएम को सेंटोस, मतलब सपोर्ट रेड देगा, लाइसेंस आईबीएम देगा, उसको बिजनेस करेगा। तुम्हारे पास में घर में 4 रूम खाली है, तुम्हारा दोस्त पार्टी वगैरह आत्मीय स्वजन रिश्तेदार सब आके उसमें रहता है, तो कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन तुम अच्छा आदमी था, चलो भाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी तुमको किसी ने दिमाग लगा दिया, ये सब घर फालतू में तुम पड़ा हुआ है, तुम्हारा तो खर्चा हो ही रहा है, एक काम करो रेंट पे भेज दिए, बताओ बैठे पैसा आते रहेगा, क्या दिक्कत है? बात समझे? तो ये सेंटोस, देखो ये सेंटोस है रेड का प्रोडक्ट, ये रहा सेंटोस। ঠিক আছে, তো বাকি এই হলো মোটামুটি আজকে আমরা এইগুলো ডিসকাস করলাম। কটা বাজে? 11:14। স্যার আমরা যে রেড ইনস্টল ওটাও কি সেন্টোস? না সেন্টোস না, সেন্ট ওএস, সেন্টোস বলছে, সেন্ট ওএস। স্যার আমাদের স্যার ল্যাপটপ গুলা ওই যেটা করে এটা কি চেক করলাম আমাদের ওই আমি মেশিনকে ফরম্যাট করে দাও, যেটা অন্য ওএস ইনস্টল করার চেষ্টা করো, বুঝতে হবে কি হয়। ओएम सर ऑफ नहीं होता है सर? অফিসিয়ালি না, ও করে আনঅফিসিয়ালি হ্যাঁ, যে ইউজ করনা করবে পড়তা করবে যদি বলতে এখানে একসাথে করতে করে भैया ऐसे তুমি করে যেটা এনার্জি হলো লাগবে পয়সা নেবে, কমিশন নেবে। Don't give service for free anyway. सर जी अटेंडेंस सर हम लोग दे दे।
Hardware বেরোচ্ছে। এই ঘোড়া এই বাবা একটু বলিস। সেই সবাই পারবে। কলকাতাতে ভালো। चलो शुरू करो माउथ ओपन करो सिस्टम पे बैठ जा टू 278 479 नाम लगता है उनका अनुपम 8479 কোন ঘরে শুনছি ঘরে আছে ওটা এক একটা কাউন্টের উপর ডিপেন্ড করে সবাই ঢুকেছো জলদি 278 479 সবাই মারি एक एक का मार्ट শুরু করে কে ঢোকেনি মনে বুঝেছো ও ঢুকেছো এই তোমরা রোহন यस सर বুঝে তোমরা আগে जल्दी 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 करो हो गया स्टार्ट करें चलो বাহ লিওপাট্রা লিওপাট্রার নাম শোনো নি কপি করার কথা বলছে পরের প্রশ্ন আসবে চলো কর কোশ্চেন আছে 21টা বড় কি করা লাগবে देखिए सारे स्माइल से বলে হবে না না আমাদের তো মানে এ হবে এ আমাদের প্রোগ্রামার কি ও অয়নিকা প্রোগ্রাম কি ওরসি বাবা এই তো দিয়ে দিয়েছি দিয়ে আবার বলিস তাহলে হবে হোয়াটসঅ্যাপ ক্যাফে দেখ দিয়ে চপচপ হয়ে গেছে চলে গেছে কেজি ফেলে দিল ক্লাসে
আমি তো আই করেছি তুই যখন কি করবো এবারে তুই করে দিস তোর কথা শুনে দিয়ে তুক্কা লাগে নিয়ে এবারে তুক্কা লাগে এমপিডিএ আমরা একটা দিয়ে দিচ্ছি একজন সৌভিক দুই একজন आराम से आराम সিটি 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 সিনেমা তো ভোকাল ধরা যাচ্ছে না সৌরভ তো বেশি বলতে আর এম দিয়ে তো ডিলিট না মানে বুঝতে পারিনি আমি কথা বলতাম একুশটা করতে IPL সামনে তাছাড়া ডিফল্ট ডেট করে আছে উপরে ওঠো উপরে আরে সবার থেকে আলাদা মানে পারমিশন নিয়ে রিকার্সিভ হলো কিন্তু ওখানে লেখা উচিত ছিল পারমিশন হবে নাকি তাহলে আমি মিটিংটা বন্ধ করে দিচ্ছি, আমরা কাউন্টটা করে নিও। চলো।